Okay, guys, we'll start again. Everybody's here. Okay, 16 people are here. We'll start. Can you hear me? Yes, Can sir. you? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. So switch on your cameras. Very important because you have to pay attention to these 2 hours. After that, what you do, I don't care. But if you don't pay attention for these 2 hours, it will be difficult for you. Okay. So depth of field we already have discussed. I have formulated few questions, and particularly today, from the point of view, some of the questions are also being formulated from the point of view of sensor size. Because I told you earlier, the sensor size is also important for deciding the depth of field. So we will discuss that at the end. But before that, some simple questions I have formulated. Few questions are tricky, so you need to pay little attention. If you know something, then it is easy. If you don't know something, it's difficult. So you might find these questions easier, but few questions are very tricky. I have marked them as a yellow or red. As the time start, we will also discuss that. So we told you the depth of field is basically a zone of sharpness within which objects are acceptably sharp. So again, higher depth of field and lower depth of field, we will talk about that and some combination and situation where we can use this idea to discuss. Okay. So what we talk about that is a distance. Here, sometimes the language would be different, but the point you need to get. So the field of view width is not a very common layman term. It is not correct. Distance between the nearest and the farthest object in focus. Yes, as I said, the zone of sharpness. So correct answer is B. Zoom range has nothing to do. The sensor size in a different way, but it does not define. Here the correct is sensor size does not define the depth of field. Here they are asking the depth of field definition. Okay. So which aperture setting result? Just give me a moment. Okay. So which aperture setting result in the shallowest depth of field? As you know, the highest the shutter speed, highest the aperture number wise. More sorry, shallow means the widest the aperture in terms of the size of the aperture. More shallow the depth of field would be there. So correct answer is 2.8 A. Stopping down means cutting down, as I said, which means here they have already clearly defined increased f number, because sometimes they may not say increase f number. They might say just stop down. Stop down means increasing the number. Result in a shallow depth of field, more blur, greater depth of field. So correct answer is C. Shallow depth of field is ideal for, now this is an application based question where the shallow depth of field is required. Landscape do you need? No, we want everything to be in a focus. Street scene, we want everybody to be in a focus. Portrait, we want only the person to be in focus and rest not. So architecture is also something in which the entire building is also required to be in a focus. So correct answer is C. Which of these increases the depth of field? Using a wide aperture, using a telephoto lens, using a narrow aperture. Here they have defined what did, sometimes they may not say f16. So narrow means small. You can also use common sense of what exactly they're trying to say. Narrow means small in terms of hole. So correct answer is C, because we know the depth of field is higher over there. Which factor does not does not affect the depth of field? So we know basically the four factor. So which four factor are here and which is not, you need to figure it out. So film speed has nothing to do with the depth of field. Make sure that you read the question twice before you answer it. Don't be in a hurry, because sometimes even a small confusion examiner can put in the question paper, in the question itself, and you will not be able to understand and underline, and you might give a wrong answer. So not only you lose 2 marks, but you also lose 0.5 marks. So 2.5 marks you would lose for a wrong answer. Remember it. So read the question correctly. As the subject gets closer to the camera, depth of field will become greater, shallower, unchanged, or infinite. As we know that the depth of field depends upon the distance between the subject and the camera. Okay. So if you go closer to the camera, what will happen? The distance is becoming less. If the distance is becoming less, what is happening? Depth of field is becoming less. So shallower it will be.
which because this depth of field is more important than any singular domain, aperture, shutter speed, film speed, because here you can combine all these things, rest of these nomenclature, into a little complex situation. So I thought we must have some question related with our depth of field. So which focal length create the shallowest depth of field? All else being equal, which means other factor which affect the depth of field are same. So which focal length will increase the depth of field? Definitely the one which is a wide, so a close focal length create the shallow. Shallow means we need the narrow angle of focus, which means telephoto lens. And hence 135 mm is correct because rest of the lenses are either normal or wide. The depth of field is commonly used in portrait, sport, landscape, photography, or macro. We told you already that in the portrait, depth of field is not required. Sports photo. Now look at depth of field is commonly used in sports में है ही हमारे पास, ठीक है जी. पोर्ट्रेट के अंदर जो है लैंडस्केप फोटोग्राफ, देखो तीनों इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है क्वेश्चन के अंदर. डीप इट्स नॉट एक्चुअली करेक्टली फॉर्मुलेटेड ऑल्सो. ए डीप डेप्थ ऑफ फील्ड इज कॉमनली यूज्ड इन डिप्थ ऑफ स्पोर्ट्स फोटोग्राफी. नहीं, स्पोर्ट्स फोटोग्राफी में अगर आप इस नॉर्मली क्या होता है कि जो आदमी बैट्समैन है, फुटबॉल प्लेयर है, उसमें शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड की जरूरत पड़ती है बिकॉज इन स्पोर्ट्स यू आर सिटिंग इन द far off distance. So most of the sports photographer have the telephoto lenses. So there is a shallow depth of field is required. Portrait, we just told you shallow depth of field is there. Macro also, because these are small creature, depth of field is already low. So comparative to these three options, landscape photography is the one in which we need the maximum depth of field. But in other cases, as we discussed previously, they all were having the areas where the depth of field is more required. So correct, it was the reverse of this question. So this question is reverse of the previous one. Now this is a tricky question. Who will answer it? Which technique increases depth of field without changing exposure? आपको सब कुछ पता है डेप्थ ऑफ फील्ड का? सर इन लोगों ऑप्शन, में बातें करते हुए. सर ऑप्शन बी. हाँ जी, टाइप करना चालू कर दो सब लोग. कितने लोग हैं यहाँ पर हमारे पास? 19, 18 हो गए मतलब एक तरीके से. 18 लोग हैं तो 18 लोग बताएंगे खटाखट खटाखट. 5 सेकंड लगना चाहिए. 1 2 3 4 5. करेक्ट. अभी तक तुम सोचे जा रहे हो. हाँ जी, अब मैं ऊपर से पढ़ना चालू कर रहा हूं. एक ने बोला सी सी सी, फिर बी वाला एक आदमी आ गया, फिर सी 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 सी, फिर बी वाला आदमी आ गया, फिर सी 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 सी, फिर ए वाला कोई आ गया, फिर सी आ गया. हाँ जी, लॉजिक समझाइए. कोई भी समझा सकता है अपना लॉजिक. अगर सब लोग सी बोल रहे हैं तो सी क्यों है ये कौन बताएगा? ऊपर से चालू किया किसी ने सी, तो सब लोग सी 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 चालू हो गए. तो सी क्यों है? क्या होता है फोकस स्टैकिंग? फोकस स्टैकिंग तुम बोल रहे हो तो पता तो होगा. क्या होता है फोकस स्टैकिंग? Sir, क्या लगा रहे हो? blending multiple images into one in the post production. Correct. So in post production, what we do is, I have given little explanation. फोकस देखो तुक्के से नहीं. तुम इंटरनेट में ढूंढ रहे हो, वहां से पढ़ रहे हो, वो तुम धोखा दे रहे हो अपने आप को, मुझे नहीं दे रहे हो. वहां कोई इंटरनेट नहीं आने वाला तुम्हारे पास, ध्यान रखना. वहां पर सब लोगों के मोबाइल बाहर रखवा लिए जाते हैं. अलाउड नहीं होता है वहां मोबाइल ले जाके साथ में वहां से मोबाइल में ढूंढ लेंगे. ठीक है. Focus stacking is a photography technique where multiple images of the same scene, each focused at a slightly different points, are being combined to create a single image with a greater depth of field than any of the individual source image. Essentially, it is a way to achieve sharp focus across the entire image, even when using a shallow depth of field by blending the sharp areas of multiple photos. ठीक है जी. तो गोल क्या है हमारा? Create a single image with a large depth of field where everything appears to be sharper from front to back. Okay? Multiple images are taken, each with a different focus. एक मिनट.
ये आवाज आ रही है कहां से? आप लोगों को भी आ रही है, मुझे ही आ रही है? किसी आदमी ने अपना ऑडियो खोला हुआ है, ऑडियो बंद कर दीजिए। ठीक है जी। हाँ जी। सो मल्टीपल इमेजेस आर टेकन विद, अब मल्टीपल में कितनी इमेज ली जाएगी? 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, बट ऐसा नहीं है कि 10-15 फोटो खींचोगे तब जाके कुछ होगा। तो 3 या 4 फोटोग्राफ में काम हो जाता है। मल्टीपल इमेजेस आर टेकन विद ईच डिफरेंट फोकस पॉइंट। These images are then combined using a photo editing software like Photoshop to create a single image with the sharpest part of the each image. Why use it? When shooting a close-up object, macro photography, particularly small insect, butterfly, etc., landscape with a wide aperture, the depth of field can vary shallow, making only a small portion of the image appear sharp. Focus stacking allows photographer to overcome this limitation and achieve a sharp image across the entire scene. मैक्रो फोटोग्राफी हो गया, लैंडस्केप में अगर आपको अलग 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 एरिया को करना है तो प्रोडक्ट में वेरी ऑफन पीपल यूजेज इट। ओके, तो अभी इसी क्वेश्चन को मैं दूसरे तरीके से घुमा फिरा के पूछता हूं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फोकस स्टैकिंग? ठीक है जी। तो अभी हमने डिस्कस किया कि शार्प इमेज अक्रॉस मल्टीपल प्लेन, फोरग्राउंड, मिडल और बैकग्राउंड। अगर कोई ऑब्जेक्ट है डेप्थ के अंदर छोटे वाला, कोई माचिस है या कोई इस टाइप का सब्जेक्ट है, तो शार्पर इमेजेस अक्रॉस मल्टीपल प्लेन। सो करेक्ट आंसर इज सी। एक ही क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया, पहले थोड़ा दूसरा था, पहले अभी दूसरा है। So depth of field is larger when you are very close to your subject, using a wide aperture, using a small aperture, using a high ISO. ISO से कोई लेना देना नहीं है, अपर्चर का लेना देना है, डिस्टेंस का लेना देना है, और डिस्टेंस 4 फैक्टर हमने बात किए, फोकल लेंथ, डिस्टेंस, अपर्चर और सेंसर साइज। तो यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है? अपर्चर की। तो अपर्चर अगर स्मॉल होगा मेरे पास तो डेप्थ ऑफ फील्ड मेरे पास ज्यादा होगी। और ये वाला पहले वाला क्लियर है आपको? यू आर वेरी क्लोज टू योर सब्जेक्ट, वेरी क्लोज टू योर सब्जेक्ट होगा तो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड हो जाएगी, तो दिस इज नॉट अ करेक्ट आंसर। विच सेटिंग कॉम्बिनेशन विल गिव यू द मोस्ट डेप्थ ऑफ फील्ड? थोड़ा सा डिफिकल्ट नहीं है, बट थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। हमने बात की है पहले से ही कि डेप्थ ऑफ फील्ड में यहां पे देखिए आप, जो है अपर्चर, डिस्टेंस और फोकल लेंथ दी हुई है। ठीक है जी। एक 1 मीटर डिस्टेंस, 3 मीटर डिस्टेंस, तो 1 मीटर डिस्टेंस काफी है, एकदम पास नहीं है आप, ये कहना चाह रहा है वहां पे वो आदमी। ठीक है जी। और फोकल लेंथ सबसे ज्यादा वाइडेस्ट किसके अंदर है? 24 mm में। बहुत अच्छी बात है, वाइड में ज्यादा फोकल, और उसने और हेल्प कर दिया आपको F11 डाल के। तो F11 से और क्लियर हो गया हमारे पास कि दिस कॉम्बिनेशन में तीनों ऐसे फैक्टर हैं कि डिस्टेंस भी ज्यादा है, और हमारे पास वाइड एंगल लेंस है, और हमारा अपर्चर भी ज्यादा है। तो तीनों को उसने न्यूमेरिकल वैल्यूज के अंदर बोला है, तो इसलिए करेक्ट आंसर इज सी। अब जिसको नहीं पता वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएगा, बट जिसको पता है बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है। डिस्टेंस भी ज्यादा बता दिया उसने, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर। फोकल लेंथ भी बता दी उसने। ये बड़ा इजी आंसर है, बट ये बहुत सारे नंबर देख के आदमी कंफ्यूज हो जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है वहां पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपके पास जो टेस्टिंग का फॉर्मूला है उसको लगाइए और इट विल बी सिंपलर। अब ये बुके मैंने कल भी बात की थी, आज दोबारा से क्वेश्चन मैंने इसमें डाला है। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर थोड़ा एक इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट आता है कि व्हाट इज बुके। व्हाट इज बुके? वाइड एंगल इफेक्ट है, ये इफेक्ट भी है तो इफेक्ट ही बेसिकली, न्यूमेरिकल कोई वैल्यू तो है नहीं इसकी। अपर्चर और शटर स्पीड और डेप्थ ऑफ फील्ड इनकी सब न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, इसमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं है। तो आप कैसे पता करेंगे? वाइड एंगल में आएगा ये, वाइड एंगल में नहीं आएगा, क्योंकि डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत ज्यादा होती है, ब्लर होगा नहीं। बुके का लेना देना है ब्लर से। ब्लर मतलब आउट ऑफ फोकस। ब्लर इज नॉट ए राइट वर्ड, आउट ऑफ फोकस इज ए करेक्ट वर्ड। क्योंकि ब्लर में तो फोकस में भी चीज होगी और वो चल भी रही होगी इधर उधर, थोड़ा शार्पनेस नहीं होगा ऑब्जेक्ट के। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन शार्पनेस एंड ब्लर। ओके, सो शार्पनेस का उल्टा है ब्लर। शार्पनेस का उल्टा क्या है? ब्लर। और फोकस का उल्टा क्या है? आउट ऑफ फोकस। तो ये जब तक ऑब्जेक्ट एरिया आउट ऑफ फोकस नहीं होगा, बुके का फील नहीं आएगा। सो आउट ऑफ फोकस ब्लर एरिया, ऐसा नहीं कि फोकस्ड ब्लर एरिया। कीवर्ड इसमें क्या है, ध्यान रख लो। कंफ्यूजन पैदा किया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर, मैंने ज्यादा नहीं किया है, आप लोग जरा समझ लीजिए इसको। आउट ऑफ फोकस ब्लर, एक है फोकस ब्लर, कि मेरा सब्जेक्ट तो फोकस में था बट मैंने पेन वैन कर दिया या करेक्टर भाग रहा था, समझे क्या नहीं, और वो ब्लर हो गया। तो वहां पे बुके की बात नहीं कर सकते आप, क्योंकि बुके की बात तो बैकग्राउंड से होगी। बैकग्राउंड तो आपका फोकस में था, डेप्थ ऑफ फील्ड इतनी थी आपके पास। तो बुके का जो लेना देना है वो आउट ऑफ फोकस
एरिया से लेना देना है जो कि ब्लर की फीलिंग आपको देता है। हाइपर फोकल डिस्टेंस से कोई लेना देना है उसका नहीं, क्योंकि अभी हम हाइपर फोकल डिस्टेंस की बात करने वाले हैं। तो हाइपर फोकल डिस्टेंस का तो ओवरऑल डेप्थ ऑफ फील्ड से लेना देना है, ठीक है जी, तो बुके का उससे लेना देना नहीं है। हाइपरफोकल डिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द फोकसिंग रेंज, अभी बात करेंगे हम थोड़ा सा। शार्पनेस एट f22, डेप्थ ऑफ फोकस, शैलो डेप्थ ऑफ शैलो नहीं होगा डेप्थ ऑफ फील्ड उसके अंदर। f22 पे तो बहुत ज्यादा होगा, तो इसका भी लेना देना नहीं है। अगर यहां पे होता, अगर यहां पे होता, मान लीजिए शार्पनेस एट f1.4 एक मिनट के लिए, तो फिर आप ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि पहला आएगा दूसरा आएगा, तब ये एमसीक्यू क्वेश्चन नहीं होता, ये एमएसक्यू क्वेश्चन हो जाता जो पहले आते थे। अभी ये लोग थोड़ा सुधर गए हैं, तो ये एमसीक्यू कर दिया है, जिससे कंफ्यूजन और कम हो जाता है। एक ही आंसर करेक्ट होगा, दो का चक्कर है ही नहीं, दो में फंस जाता है आदमी की, और दूसरा भी होगा, तीसरा भी हो सकता है। तो एमएसक्यू में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, यू हैव टू बी वेरी क्लियर, बट यहां तो एक ही आंसर है, तो सिंपल है। हाँ जी। अब ये हाइपर फोकल डिस्टेंस क्या चक्कर है, इसको थोड़ा समझेंगे तो जल्दी समझ आएगा। वैसे ही तुक्का रट रूट लोगे तो कुछ नहीं होगा। इसके ऊपर दो तीन क्वेश्चन मैंने बनाए हैं, समझो इसको। कि हम जनरली जब फोकस करते हैं, कहीं भी फोकस कर सकते हैं, ठीक है जी, 5 फीट पे भी कर सकते हैं, 10 पे भी कर सकते हैं, 20 पे भी कर सकते हैं। बट लेंस की रिंग के ऊपर एक जगह होती है जहां पे लिखा होता है मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस। अब वो 2 फीट भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, ठीक है जी। तो ये डिपेंड किस चीज के ऊपर करता है, मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस के ऊपर क्या है, ठीक है जी। तो आपने देखा होगा, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है, लिख लो आप भी, कि मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस किस लेंस में ज्यादा होगा, 24 mm में होगा, 50 mm में होगा, 80 mm में होगा। मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस, आपने कभी ध्यान नहीं दिया इस बात को, अगर मैं आपसे वैसे ही पूछूं, मिनिमम फोकसिंग डिस्टेंस जो है कहां 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 पर होगा, तो वाइड एंगल लेंस 20 में बहुत डेप्थ ऑफ, 24 सर। 24 रन। वाइड वाइड एंगल लेंस में बहुत डेप्थ ऑफ फील्ड होती है हमारे पास, ठीक है जी। तो अगर हम डिस्टेंस, अगर मुझे 2 फीट पे फोकस करना है, या 3 फीट पे करना है, 5 फीट पे करना है, तो वो जो है मुझे वाइड एंगल लेंस के अंदर मिलेगा कि मैं कम डिस्टेंस पे भी फोकस कर सकता हूं। उसी का ये दूसरा वर्जन है क्वेश्चन। हाइपर फोकल डिस्टेंस इज द फोकस पॉइंट वेयर ओनली द बैकग्राउंड इज शार्प। नहीं, ऐसा नहीं होता। एवरीथिंग फ्रॉम हाफ दैट डिस्टेंस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, हाफ दैट डिस्टेंस टू इंफिनिटी इज एक्सेप्टेबल फोकस। हाफ दैट डिस्टेंस क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक पर्टिकुलर ऐसा डिस्टेंस होता है कि उस पर अगर आप फोकस करते हैं तो उससे थोड़ा सा एरिया, थोड़ा सा इन द सेंस हाफ, अगर 10 फीट पे किया तो 5 फीट होगा, और अगर वो 8 फीट पे है तो 4 फीट होगा, ठीक है जी। इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है हाफ दैट डिस्टेंस, कि अगर 10 फीट है आपका ये, तो 5 फीट का डिस्टेंस जो है, एवरीथिंग फ्रॉम 5 फीट टू इंफिनिटी इज एक्सेप्टेबल शार्प। ओनली नियरर ऑब्जेक्ट्स आर शार्प एंड फोकस इज मैनुअल। मैनुअल तो करना ही पड़ता है फोकस, बट ये दूसरे सेंस में बोल रहा है कि ऑटो फोकस होगा या मैनुअल होगा। तो ये बात क्लियर आ गई आपको। इसकी जरूरत कहां पड़ती है? इसकी जरूरत पड़ती है डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के अंदर, जहां इतना टाइम नहीं होता कि आप फोकस फोकस करते फिरो। तो क्या करते हैं लोग, हाइपर फोकल डिस्टेंस पे अपना लगा के भूल जाते हैं। बात समझ आ रही है आपको? क्योंकि उसके बाद तो सब कुछ शार्प ही है। तो अगर आपके पास फोकस पुलर नहीं भी है, तो इसकी यूटिलिटी क्या है इसकी, इस क्वेश्चन में एक और क्वेश्चन बन सकता है, यूटिलिटी कहां पे इस्तेमाल होता है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में, फिक्शन फिल्म मेकिंग के अंदर, या एनिमेशन फिल्म मेकिंग के अंदर, या ऑल काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग, ठीक है जी। तो ऑल काइंड में तो एनिमेशन में तो जरूरत नहीं होती है उस तरीके से, देखा जाए कंप्यूटर पे बैठ के बना रहे हो आप फिल्म। और फिक्शन में भी जरूरत नहीं है, क्योंकि फिक्शन में इतना टाइम होता है लाइट अप वाइट अप करने के लिए। तो जहां टाइम नहीं है, वहां पर आप जो है, you would utilize the idea of hyperfocal distance. Now the same question I have formulated in a different way. Which technique improves perceived sharpness throughout an image? ठीक है जी। तो focusing at hyperfocal distance will help you to get the image in focus. अब क्वेश्चन को थोड़ा थोड़ा sophisticated लैंग्वेज है। Which technique improves perceived sharpness throughout an image? कौन सी टेक्निक है ये? हाइपरफोकल की चक्करबाजी खत्म, हमने डिस्टेंस लगाया और देन वी फॉरगेट अबाउट इट एंड वी स्टार्ट शूटिंग। ओके, अनदर थिंग, सेम क्वेश्चन बट इन अ डिफरेंट लैंग्वेज।
what happens when you focus beyond the hyperfocal distance? क्या होगा? आपने मान लीजिए हाइपरफोकल डिस्टेंस जो है आपने कैलकुलेट किया कि ये 5 फीट, अगर 10 फीट पे करता हूं तो उस वहां पे उसके बाद जो है अगर मैं करता हूं तो प्रॉब्लम आती है. सो व्हाट हैपन व्हेन यू फोकस बियॉन्ड द हाइपरफोकल डिस्टेंस, मतलब आगे, नॉट बिफोर. ये बियॉन्ड और बिफोर में फर्क है. अगर यहां पर बिफोर वर्ड होता तो प्रॉब्लम आ जाती. क्यों? क्योंकि फिर डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाती है. सो व्हाट हैपन व्हेन यू फोकस बियॉन्ड द हाइपरफोकल डिस्टेंस, everything becomes sharp, foreground begins to blur. foreground begins to blur, क्योंकि उसके आगे जहां भी आपने फोकस किया है उसके आगे सब्जेक्ट जो है धीरे 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 आउट ऑफ फोकस होता जाएगा. ठीक है जी. बैकग्राउंड गोज आउट ऑफ फोकस, वो तो शार्प रहती है, हमने बोला. इमेज डार्कन्स, डार्कनेस का कोई लेना देना नहीं है. When photographing a large group मतलब 8-10 लोग हैं, अगर हमें फोटोग्राफ खींचना है, मान लीजिए, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर शार्प फोकस? शार्प फोकस तो होगा ही होगा सब लोगों के ऊपर, बट क्या है कि एरिया उसके, अगर वो ज्यादा एरिया कवर कर रहे हैं, 20 लोग हैं, तो नेचुरली तुम्हें वाइड एंगल लेंस इस्तेमाल करना पड़ेगा. करेक्ट. तो वाइड एंगल इस्तेमाल करना पड़ेगा. तो अगर आपके पास और डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, मान लीजिए, इसमें देखिए बात को समझिए, इसमें दो ऑप्शन है जिसमें थोड़ा सा गड़बड़ है, नैरो अपर्चर और वाइड लेंस. When photographing a large group, what most important for sharp focus? ठीक है जी. तो वाइड एंगल तो चाहिएगा ही चाहिएगा. वाइड एंगल तो चाहिए, क्योंकि 50 लोगों को फोटो कैसे खींचोगे? अगर 30-40 लोगों का ग्रुप है तो वाइड एंगल लेंस तो चाहिए चाहिए. बट उससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि डेप्थ ऑफ फील्ड भी हो. उससे ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है कि डेप्थ ऑफ फील्ड. तो ये दोनों जो है करेक्ट हो सकते हैं. कोई आदमी बोल सकता है वाइड एंगल लेंस की जरूरत है, फोकस तो चाहिए ही चाहिए होता है. मैं 2.8 पे भी शूट करूंगा तब भी लोग फोकस में आएंगे मेरे पास. और डेप्थ, अगर मेरा वाइड एंगल लेंस है तो वैसे ही मेरे को डेप्थ ऑफ फील्ड मिल गई. ठीक है जी. बट और शार्प चाहिए आपको. शार्प वर्ड लिखा हुआ है उसने यहां पे, शार्प फोकस. तो शार्पनेस जो है वो नैरो अपर्चर से ज्यादा आती है. तो अगर मेरे को इन दोनों में से चूज करना है, और अगर वो शार्प फोकस इस्तेमाल कर रहा है, तो आई वुड चूज द नैरो अपर्चर. मतलब F11 और 16 पे अगर मैं शूट कर रहा हूं तो मेरे लिए फोटोग्राफ और शार्प होगा कंपैरेटिव टू द वाइड लेंस. मैक्रो लेंस नेचुरली गिव्स, ये अभी हमने कल बात की थी डेप्थ ऑफ फील्ड की. ए मैक्रो लेंस नेचुरली गिव्स वेरी वाइड डेप्थ ऑफ फील्ड. नहीं. वेरी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, यस. इनफाइनाइट डेप्थ ऑफ फील्ड, नो. ब्लरी इमेजेस, नो. ब्लरी बैकग्राउंड हो सकता है. अगर यहाँ पे ब्लरी बैकग्राउंड होगा तो आप फंस जाओगे. क्यों? क्योंकि उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड कम है तो ब्लरी होगा. तो उसने ब्लरी इमेजेस लिखा है, ना कि ब्लरी बैकग्राउंड. ध्यान रखना, शब्दों का खेल है उसके अंदर. अगर ये इसको मैं और कॉम्प्लिकेटेड करना चाहूं तो ब्लरी बैकग्राउंड डाल सकता हूं और ब्लरी 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 और कुछ कर सकता हूं मैं. ठीक है जी. विच लेंस इज लाइकली टू गिव मोर बैकग्राउंड ब्लर? अभी बात हो रही है बैकग्राउंड ब्लर का मतलब क्या हुआ? अगेन आउट ऑफ फोकस. अगेन आउट ऑफ फोकस. ये बैकग्राउंड ब्लर वर्ड नहीं होना चाहिए, ब्लर आउट ऑफ फोकस वर्ड होना चाहिए. बट समटाइम पीपल प्रिफर टू यूज द सिमिलर काइंड ऑफ वर्ड्स. तो बैकग्राउंड ब्लर का मतलब भी वही है यहां पर जो आउट ऑफ फोकस है, क्योंकि बैकग्राउंड शार्प भी हो सकती है फोकस में, जैसे हमने पहले बात किया था जब हम फ्रंट को पैन कर रहे थे कैमरास को. तो ए 24 mm. अब यहां पर देखिए, आप ध्यान से देखिए किस चीज की बात कर रहा है वो. सारे जितने भी लेंसेज हैं उसके अंदर एक लेंस है जो टेलीफोटो लेंस है, वो है 85. ठीक है जी. तो टेलीफोटो लेंस के अंदर डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत नैरो होती है. करेक्ट. और उसने और हेल्प करने के लिए क्या करा, 1.8 भी लगा दिया. तो डेप्थ ऑफ फील्ड और भी मेरे पास कम हो गई. तो दोनों चीजों को उसने कंबाइन कर दिया है सो दैट इट बिकम मोर इजियर. अगर वो F4 भी लिख देता है यहां पर 50 mm के कंपैरेटिवली मान लीजिए, तब भी आपके पास चॉइस कौन सी होती? 85. क्यों? क्योंकि 85 में टेलीफोटो लेंस है तो डेप्थ ऑफ फील्ड और कम होगी. What happened to depth of field when you switch from f2.8 to 8? पहले भी हमने बात की है. जैसे नंबर बढ़ जाएगा डेप्थ ऑफ फील्ड इंक्रीज हो जाएगी. तो करेक्ट आंसर वुड बी बी. What role does subject distance play in depth of field? मैंने पहले भी बताया था, जैसे जैसे सब्जेक्ट बढ़ता रहता है ऐसे ऐसे इंक्रीज जो है डेप्थ ऑफ फील्ड होती जाती है. सो ग्रेटर द सब्जेक्ट ग्रेटर द डेप्थ ऑफ फील्ड. ग्रेटर इंक्रीज मींस ग्रेटर डेप्थ ऑफ फील्ड.
पोर्ट्रेट फोटोग्राफर ऑफन प्रिफर, हमने पहले भी बात की है इसको, दोबारा से हमने इसी क्वेश्चन को न्यूमेरिकल वैल्यूज में डाल दिया है। मतलब टेलीफोटो लेंस और 1.8 85 mm लेंस टेलीफोटो होगा तो बैकग्राउंड में कुछ ब्लर आएगा, जो भी छोटी मोटी अगर बैकग्राउंड उसने जैसी भी लगाई रखी, और 1.8 पे और जो है डेप्थ ऑफ फील्ड कम होगी तो और ब्लर होगा। समटाइम दे गिव द बोथ द फैक्टर, समटाइम दे कीप वन फैक्टर कांस्टेंट एंड रेस्ट वुड वेरी। हाँ जी, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करिए। 24, इन सिनेमेटोग्राफी डेप्थ ऑफ फील्ड इज यूज्ड। भाई फोटोग्राफी और सिनेमाटोग्राफी उसमें क्या फर्क पड़ता है, डेप्थ ऑफ फील्ड तो डेप्थ ऑफ फील्ड है, बट वो एप्लीकेशन की बात कर रहा है यहां पर। ओनली इंक्रीजेस शार्पनेस, मैच एक्सपोजर, डायरेक्टर व्यूअर्स अटेंडेंस अटेंशन एंड रिड्यूस कंट्रास्ट। इसके अंदर सी क्यों रखा गया है हमने, क्योंकि अगर मैं शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड इस्तेमाल करता हूं मान लीजिए 1 मिनट के लिए, तो आई कैन डायरेक्ट व्यूअर्स अटेंशन एट ए पर्टिकुलर थिंग, कि यहां पर जो है कोई रिवॉल्वर रखा है या कोई डेड बॉडी है या कुछ कुछ भी है जहां पर हमें जो है शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड को इस्तेमाल करके मैं कर सकता हूं। टू आइसोलेट ए सब्जेक्ट इन ए बिजी बैकग्राउंड यू शुड, जैसे पहले भी बात की है हम लोगों ने, आइसोलेशन कब होता है, जब बैकग्राउंड जो है पूरी की पूरी या तो आप ब्लर करिए वहां पर, और क्योंकि ये बिजी बैकग्राउंड है, बिजी बैकग्राउंड का मतलब वो बोल रहा है वाइड वाइड एंगल लेंस चाहिए मुझे लेंस, तो वाइड एंगल लेंस को लेके आप फोरग्राउंड में अगर कोई सब्जेक्ट है उसको क्लोजर टू योर सब्जेक्ट अगर आप उसको रखेंगे तो इट विल बी हैविंग ए फोकस। पर्सपेक्टिव की बात की, एक्चुअली पर्सपेक्टिव का क्वेश्चन है, ये गलत जगह मैंने यहाँ रख दिया है, बट क्योंकि डेप्थ ऑफ फील्ड से भी लेना देना है इसका 24 mm लेंस से या 30 mm लेंस से, तो इसलिए यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। टू आइसोलेट ए सब्जेक्ट इन ए बिजी बैकग्राउंड यू शुड यूज ए नैरो एपर्चर, एपर्चर नैरो करोगे, एक एक तो डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाएगी, 16-11 पे शूट करोगे, फोकस एट इन्फिनिटी तो वो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट आपका 5 फीट पे, तो क्या करोगे इन्फिनिटी पे थोड़ी फोकस करोगे। यूज वाइडर अपर्चर, वाइड अपर्चर से क्या होगा कि डेप्थ ऑफ फील्ड आपकी कम हो जाएगी और सब्जेक्ट आपका स्टैंड आउट हो जाएगा बैकग्राउंड से। तो सी इज अ करेक्ट आंसर। फिल्म स्पीड का कोई लेना देना नहीं है, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली है वो हम आगे यूज करेंगे। एज द अपर्चर नंबर इंक्रीजेस, अपर्चर नंबर इंक्रीज करता है मतलब 16 हो गया, 11 हो गया, मोर लाइट एंटर, नो, लाइट कट डाउन हो जाती है। डेप्थ ऑफ फील्ड इंक्रीजेस, पता ही है सब लोगों को, डेप्थ ऑफ फील्ड डिक्रीजेस, सॉरी, नो, डेप्थ ऑफ फील्ड इंक्रीजेस। सो सी इज द करेक्ट आंसर, शटर स्पीड से कोई लेना देना नहीं है। Which lens type is most commonly used to achieve shallow depth of field in video interviews? Which lens type is most commonly used to achieve shallow depth of field in video? अब वो वीडियो हो या फिल्म हो, उससे क्या लेना देना है मुझे, वीडियो और फिल्म से तो कोई लेना देना नहीं है, ठीक है जी। लेना देना किस चीज से है, उस चीज की हम बात करेंगे। तो शैलो चाहिए, इसका मतलब टेलीफोटो, यहां पर फोटो, यहां पर टेलीफोटो, अगर मैं लेंस इस्तेमाल करता हूँ 85 mm, ठीक है जी, तो मेरे को शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी। 35 mm का टिल्ट शिफ्ट हो या ना हो उससे क्या लेन देना है, टिल्ट शिफ्ट का पर्पस कुछ और है, हमने कल आपसे बात की थी, वो जो प्लेन ऑफ फोकस है उसका एस्थेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, उसको टेक केयर करता है टिल्ट शिफ्ट, ठीक है जी। तो यहां पर डेप्थ ऑफ फील्ड की बात हो रही है, तो हम लोग क्या बात करेंगे, 85 है। अब ये किट लेंस लिख दो, ये सब कंफ्यूज करने के लिए लिखा हुआ है उसने, देखो 3-4 चीजें लिखी हुई हैं इसमें, किट लेंस लिखा है, टिल्ट शिफ्ट लिखा हुआ है, उसमें वाइड एंगल लिख दिया है, इसमें फास्ट प्राइम लिख दिया है। इन चार अगर ना भी लिखे हो, चारों के चारों नहीं लिखे, तब भी मेरा आंसर वही है। तो एक कंफ्यूज करने के लिए लोगों को लिख दिया है कि टिल्ट शिफ्ट के चक्कर में लोग 35 पे लगा दे। कंफ्यूजन कैसे किया जाए वो एक सारा खेल होता है, जो मैंने पहले भी बात की है। अगर ये सिंपल सा क्वेश्चन हो 24, 50, 85, 35, तो खड़क से आप बोल दोगे 85, बट यहां पर ये चार शब्द जो आगे लग गए हैं, इससे आप लोग चक्कर में पड़ जाते हैं। What happen when you use long lens at f2.8 from a short distance? कीवर्ड क्या है इसके अंदर, देखिए, लॉन्ग लेंस मतलब टेलीफोटो लेंस, वाइडेस्ट अपर्चर 2.8 हो गया, और शॉर्ट डिस्टेंस मतलब पास में चले गए और शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड आ गई। तो तीनों की तीनों चीजें मिलकर क्या कर रही हैं आपको, सी सी जो है वेरी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड दे रही है। ये वेरी वर्ड क्यों आ रहा है, क्योंकि टेलीफोटो लेंस भी है, वाइड एंगल शॉर्ट 2.8 है, फुल ओपनिंग है, और डिस्टेंस भी आपका कम है। Which factor combination yield the most background blur? Very, very important thing. Which factor combination
यील्ड द मोस्ट बैकग्राउंड ब्लर, तो वही वाली बात हो रही है डेप्थ ऑफ फील्ड की। तीनों चीजें उसने लगा दी हैं उसके अंदर। मेरा अपर्चर भी वाइड हो, लॉन्ग लेंस हो टेलीफोटो, और क्लोज सब्जेक्ट हो, तो मुझे ब्लर बैकग्राउंड मिल जाएगा। आंसर सी इज करेक्ट। टू मैक्सिमाइज शार्पनेस अक्रॉस एन एंटायर लैंडस्केप ए फोटोग्राफर शुड यूज, अब वो क्या बोल रहा है, मैक्सिमाइज शार्पनेस अक्रॉस द एंटायर लैंडस्केप। लैंडस्केप है तो हम लोग वाइड एंगल लेंस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है जी। और अगर साथ में अगर अपर्चर भी 11 या 16 होगा तो बेटर रहेगा, करेक्ट। सो ऑल दीज कॉम्बिनेशन, पुट डाउन द करेक्ट आंसर एज सी। विच एफ नंबर रिप्रेजेंट द वाइडेस्ट अपर्चर, जो हमने पहले ही बात की है आपसे, 1.4। 1.4 से नीचे जनरली 1.2 भी कभी कभी होता है, बट यहां पे नहीं लिखा है तो हम नहीं सोचेंगे, हम लोग केवल जो दिखा है उसके बारे में सोचेंगे। और करेक्ट आंसर इज ए। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से करिएगा, लाल मार्क किया हुआ है मैंने इसीलिए। व्हाट इज द मेन ड्रॉबैक ऑफ एक्सट्रीमली शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड? ड्रॉबैक क्या है एक्सट्रीमली शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड का? सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है कि जब आप फोकस पुलिंग करेंगे, जब आप कभी जिंदगी में असिस्टेंट बनेंगे, तो फोकस पुलिंग के टाइम में अगर आपका डेप्थ ऑफ फील्ड कम है तो आपका फोकस जो है आउट जा सकता है, क्योंकि कैरेक्टर भी चल रहा है, कैमरा भी चल रहा है, ठीक है जी। तो फोकस टॉलरेंस इज वेरी स्मॉल, focus tolerance is very small. So normally people like me, if I am shooting with a full telephoto lens in a indoor situation, for some reason I do not light up at f2 f2.8, I try to light up at f4, so that focus puller will have the life easy. Which focus length is more likely to create a deeper depth of field at the same aperture? एक एक चीज का ध्यान रखो, कीवर्ड का मैंने पहले बोला है, विच फोकल लेंथ पूछ रहा है, क्वेश्चन क्या है, फोकल लेंथ, तो उसने 4 फोकल लेंथ लिख दी है। अब इसमें कुछ आगे चक्करबाजी नहीं लिखा हुआ उसने, ठीक है जी, तो वो सीधा सीधा क्वेश्चन है उसका। मोर लाइकली टू ग्रेट डीपर डेप्थ ऑफ फील्ड, ऑब्वियसली वाइड एंगल लेंस 35 mm। कंफ्यूजन पैदा होता है जब इसके आगे कुछ लिख देगा वो 4-5, जैसे हमने पहले लिखा था कंफ्यूजन के लिए, ये सिंपल है, वो कंफ्यूज वाला था। Which of these will result in a more cinematic shallow focus look? अब ये देखो यहां फंसा दिया तुम लोगों को, ध्यान से समझो, मैंने आंसर लिखा हुआ है बट इसका मतलब नहीं है कि तुमको भी आंसर पता है। Which of these will result in a more cinematic shallow focus look? ठीक है जी। तो आप यहां पे पहले पहले आप टेली फोकल लेंथ को देखिए, 24, 35, 85, 80, 18 mm। तो ये बहुत क्लियर हो जाता है कि 85 टेलीफोटो लेंस है, तो इसी में कुछ होना चाहिए। अगर आगे कुछ चक्कर नहीं है, आगे भी उसने बोल दिया 1.4, तो इट इज हेल्पिंग यू। तो करेक्ट आंसर इज सी। आगे अगर दो 85 वाले लेंस और आगे कुछ चक्कर डाल देगा तो तुम फंस जाओगे, ठीक है। दो 24 डाल दिए और दो 85 के डाल दिए, तो 85 के साथ में क्या है वो आपको देखना पड़ेगा, दैट विल बी योर डिटरमाइनिंग फैक्टर, विच इज अ करेक्ट आंसर। A photograph taken with a telephoto lens typically has shallow depth of field, हमने पहले भी बात की है, तो यहां पर उसने टेलीफोटो लेंस इस्तेमाल कर लिया है वर्ड को, ना कि टेक्निकल वर्ड। तो टेलीफोटो लेंस का लेना देना क्या है आप लोगों को पता है। हाउ डज इंक्रीजिंग द सब्जेक्ट टू बैकग्राउंड डिस्टेंस अफेक्ट बैकग्राउंड ब्लर? अगेन वही वाली बात आ गई है। अगर मैंने हाउ डज इंक्रीजिंग द सब्जेक्ट टू बैकग्राउंड डिस्टेंस, सब्जेक्ट टू बैकग्राउंड डिस्टेंस का मतलब मान लीजिए मैं 10 फीट पे हूं और अभी जो है मेरा मेरा कैमरा जो है 20 फीट पे चला गया, ठीक है जी। तो बैकग्राउंड ब्लर जो पहले था उसका क्या होगा, अभी इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा, क्या होगा, बैकग्राउंड ब्लर जो है इंक्रीज होगा डिक्रीज होगा। हाउ डज द इंक्रीजिंग द सब्जेक्ट टू बैकग्राउंड अफेक्ट द बैकग्राउंड ब्लर? ठीक है जी। विच लाइटिंग कंडीशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर शूटिंग f22? अब लाइटिंग कंडीशन की बात कर रहा है तो इसका मतलब डे लाइट होगा, तभी तो जाके शूट कर पाएंगे 22 पे, स्टूडियो के अंदर थोड़ी शूट कर सकते हैं आप लोग। तो उसने यहां पर चक्करबाजी क्या है, ओवरकास्ट इवनिंग, ब्राइट डे, बैकलिट सनलाइट एंड लो लाइट इंडोर। बात क्या हो रही है, लो लाइट इंडोर तो बाहर बाहर हो गया वैसे ही, क्योंकि इंडोर में जाएंगे तो लाइट कम हो गई। बैकलिट सीन की बात हो रही है, तो उससे बैकलिट सीन का मतलब आर्टिफिशियल लाइट की बात कर रहे हो आप, मगर एट द सेम टाइम बैकलिट सीन ये भी हो सकता है, सनलाइट के अंदर भी बैकलाइट वाला सीन हो सकता है। आप अगर आपका सन जो है आपके बैक पे है तो आप बैकलिट हो गए, ठीक है जी। मगर बैकलिट सीन जो है नॉर्मली अगर हम जब बात करते हैं तो आर्टिफिशियल लाइट की बात करते हैं, तो यहां पर करेक्ट ये होना चाहिए बैकलिट सीन इन स्टूडियो,
दैट विल बी मोर बेटर ऑप्शन। क्यों? क्योंकि उससे आदमी कंफ्यूज नहीं होगा। आउटडोर में भी बैकलाइट हो सकती है, होती है, समझे कि नहीं? अभी एक इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझे याद आ गया, अभी मैं पूछ लेता हूं, भूल जाऊंगा वरना मैं अभी पूछता हूं इसके बाद। ब्राइट डे लाइट, यस। ओवरकास्ट इवनिंग, नहीं। ओवरकास्ट डे अगर लिख देता मान लीजिए यहां पर, ओवरकास्ट डे लाइट, अगर वो बोलता ओवरकास्ट डे लाइट है, तो ओवरकास्ट डे लाइट में F22 अपर्चर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि लाइट थोड़ी सी कम हो गई है, डिफ्यूजन लग गया है सन के ऊपर, बादल छा गए हैं। ठीक है जी। आपको क्लाउडी डे में सन दिखाई देता है कहीं? नहीं दिखाई देता है। तो क्या हो गया? इट इज बीइंग डिफ्यूज, पूरी लाइट डिफ्यूज हो गई, मतलब लाइट कम हो गई। लाइट कम हो गई तो F22 कहां से लाओगे? F8 मिलेगा तुमको अपर्चर। तो ये ओवरकास्ट इवनिंग कह दिया उसने यहां पर, ओवरकास्ट डे लाइट भी बोल सकता था। ठीक है जी। अब मुझे तुम में से कौन आदमी बताएगा सबसे पहले अपना हाथ खड़ा करके कि डिफरेंस बिटवीन डे लाइट एंड सनलाइट? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डे लाइट एंड, पहला क्वेश्चन क्या है कि दोनों एक ही चीजें हैं या अलग अलग चीजें हैं? फर्स्ट क्वेश्चन इज डे लाइट इक्वल टू सनलाइट? लगता तो ऐसा ही है। इफ द आंसर इज नो, देन व्हाट इज द डिफरेंस? थोड़ा तुम भी कुछ बोलो, बहुत घूम फिर रही हो इधर उधर। जीशान कैमरा Sir, daylight होता, can be बीच में से कुछ नहीं associated. होता। हाँ जी बोलिए, बोलिए। Daylight can be associated with time periods ranging between the afternoon, but sunlight can be used as a golden hour, which can result in cinematic images between say 5 p.m. to देखो 6 ये देखो, p.m. एक बात सुन लो सब लोग, ये इंग्लिश ऑनर्स की क्लास नहीं है। दिस इज नॉट ए इंग्लिश ऑनर्स क्लास, दिस इज अ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन एंड क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्सेप्ट। अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मोर ओवर हाउ एवर बोल के इधर उधर सिनेमेटिक फलाना ढिमका गोल्डन आवर वावर बोलते रहोगे। बी फोकस्ड इन योर आंसर। एनीबडी एल्स वुड अटेम्प्ट? Sir, sunlight is more harsh and sharp डे and लाइट इज नॉट, no, daylight is more डे like an लाइट इज वेरी सॉफ्ट। it's like an ambient light mixture of sunlight and skylight. करेक्ट। सो इट इज बोथ। व्हेन यू से daylight is a direct light coming from sun, A. B, light coming from sky. स्काई भी तो दे रहा है लाइट आपको, स्काई से भी तो लाइट आ रही है। तो स्काई से लाइट कहां आ रही है? स्काई क्या है बेसिकली? स्काई है क्या? स्काई एक तरीके का डिफ्यूजर है। स्काई एक तरीके का डिफ्यूजर है। तो लाइट वहां से भी आ रही है, बाउंस होके वहां से। ठीक है जी। तो लाइट वहां से भी आ रही है और लाइट वहां से भी आ रही है। तो क्या करेंगे आप? सनलाइट की जब आप बात कर रहे हैं तो डायरेक्ट सनलाइट की बात हो रही है। बट जब आप डे लाइट की बात कर रहे हैं तो इसमें दो टाइप की लाइट इंक्लूड है, बल्कि और टाइप की भी लाइट इंक्लूड हो सकती है। एक डायरेक्ट सनलाइट हो गई, एक स्काई लाइट हो गई, एक लाइट जमीन से बाउंस होके आ रही है इधर उधर से, कुछ लाइट बिल्डिंग से भी बाउंस होके आ रही है। ठीक है जी। तो बाउंस लाइट फ्रॉम वेरियस ऑब्जेक्ट, बाउंसिंग फ्रॉम ग्राउंड ऑल्सो। सो इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल काइंड ऑफ लाइट्स coming from various sources, whether it is a direct or whether it is a diffuse. So sunlight is a direct light coming from sun falling on us, and when we say daylight, इसमें सारी लाइटें जो है मिक्स हो जाती हैं. It is a mixed light which is combination of direct light, diffuse light, bounce light from here and there. All kind of light are included. ठीक है जी. मैं क्या बोल रहा था अभी, एक क्वेश्चन पूछने के लिए आपसे, बैकलाइट. हाँ जी, ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है. मैं किसी जमाने में जब अवशिष्ट करता था, मुझे उस टाइम में नहीं समझ आया, उसके एक हफ्ते बाद ये क्वेश्चन का आंसर मुझे समझ आया. तो आप कह सकते हो कि मैं मूर्ख था, बट आप लोग समझदार आदमी हैं तो आपसे पूछ लेते हैं. सो सपोज यू आर शूटिंग ए आउटडोर. इन आउटडोर you are shooting a close up of a person and the sunlight is at 12 o'clock or 1 o'clock, and you cut down
So is a 1 o'clock, or let's say for example, kind of 1 or 3 maybe. Okay. So it is giving a backlight to the character, and you can all these black socket which you get it because the top light, you can add a fill light from the front. That is option 1. Okay. Option number 2, you would cut down the top light and use the artificial, let's say HMI light, to give the backlight. So what you will prefer? Two options I have given to you. Okay, I can fill the light from the front using HMI light. So my black socket are gone. So purpose of not shooting at the top light is gone. There is the option B. I cut down the top light, use my HMI light to create a backlight, and give the fill light from the front. So which option you will prefer and why? Sir, option 2. क्यों? Because sunlight can change. For example, if our shoot is happening for an hour, so the sunlight can change. So if we diffuse the sunlight, so it will result in a uniform lighting situation. And after that, we can add a light source, enabling us to set the whole scene by ourselves. Correct. That is the one answer, one reason. Second is, most important is, when you are using the sun as a backlight, the color temperature is different. And when you are using the front light, HMI light, the color temperature is 5500 degree. Correct? So mismatch of the color temperature is one reason. And second reason is, top light, which is sunlight, will have a very high brightness, which is a 22. और HMI अगर पास भी ले जाते हो तो उतना फिल लाइट नहीं दे पाता है, उतना फिल लाइट नहीं दे पाता है आपको, और वो डिस्टेंस है तो और भी कम हो जाएगा. So it is a good idea to cut down the top light, use backlight in a controlled manner to give the backlight feel, and you can use the diffuse light from the top, from the front, so that both the color temperature of the light will match, and also the intensity you can manipulate in a easy manner. समझ आ गया जी सब लोगों को? हाँ जी. To get both a subject and background sharp in a street scene. अब देखो कीवर्ड क्या क्या है इसके अंदर. बोथ द सब्जेक्ट एंड बैकग्राउंड, सब कुछ हमें फोकस में चाहिए. स्ट्रीट फोटोग्राफी है, स्ट्रीट सीन है, तो क्या करेंगे हम लोग? f1.8 लेंगे, टेलीफोटो लेंस लेंगे 11 विद वाइड एंगल लेंस. मुझे दोनों चीजें मिल रही हैं, वाइड एंगल में भी पूरा का पूरा आ गया, सब कुछ फोकस में, और f11 पे तो सब कुछ फोकस में वैसे ही आएगा. तो दोनों चीजें आपको हेल्प कर दी हैं. सो दैट द करेक्ट आंसर इज सी. Shallow depth of field can be utilized artistically too. Shallow depth of field can be used artistically to flatten the contrast, reduce the noise, separate the subject from the background, and compress the shadow. तो हमने पहले भी बात की है, आर्टिस्टिक यूज क्या है उसका, कि हम चाहते हैं बैकग्राउंड ब्लर हो जाए. दैट इज ए आर्टिस्टिक यूज. Flatten contrast is never an artistic use, but many a times, sometime you see portrait photography. पोर्ट्रेट फोटोग्राफ देखेंगे तो उसमें पूरा का पूरा जो है सॉफ्ट लाइट होती है, तो कंट्रास्ट तो नहीं होता उसके अंदर. तो सम टाइम फ्लैट फोटोग्राफी, फ्लैट लाइटिंग फोटोग्राफी विद अ डिफ्यूज लाइट also looks nice, but people do use the filters like portrait filter, some soft effect filter kind of a thing. What happens when aperture is stopped down too far? For example, f22 पहले भी बताया हम लोगों ने. अगर आप कट डाउन करेंगे तो उससे क्या होगा कि हमारे को डिफ्रैक्शन सॉफ्टन द इमेज. मैंने शायद अभी तक आपको पढ़ाया नहीं है, इसको समझ लीजिए. एक ही ड्रॉबैक है हायर अपर्चर पे शूट करने का, और वो ड्रॉबैक क्या है कि उसमें डिफ्रैक्शन का फिनोमेना चालू हो जाता है. ये हम आपसे बात करेंगे एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, कि डिफ्रैक्शन, डिस्पर्शन, डिफ्लेक्शन, ये जो फिजिक्स के टर्मिनोलॉजी है जो लाइट के साथ इस्तेमाल होती है, वो हम लोग एक क्वेश्चन एक दिन उस पर कुछ थोड़ा सा टाइम डिवोट करेंगे, कुछ 30-40 क्वेश्चन भी बनाएंगे उसमें, जिससे क्या है वो आपको क्लियर तरीके से समझ आ जाए. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम डिफ्रैक्शन होता है, जिसकी वजह से आपकी इमेज जो है
वो उसके अंदर जो स्ट्रे लाइट आती है, जिसको नॉन इमेज फॉर्मिंग लाइट बोलते हैं हम लोग, उसकी वजह से जो शार्पनेस है कभी कभी जो है वो प्रॉब्लम आ जाती है उसके अंदर। सो डिफ्रैक्शन सॉफ्टन द इमेज। सॉफ्टन द इमेज का मतलब उस पे जो है वो जो ग्लेयर टाइप का जो इफेक्ट आता है उसकी वजह से सॉफ्टनेस थोड़ी सी आ जाती है। तो दैट्स द ओनली ड्रॉबैक एट शूटिंग एट हायर अपर्चर। और 32 पे तो कभी करना ही नहीं चाहिए नॉर्मली, अनटिल अनलेस देयर इज ए वेरी डिमांड कि भाई कोई चार्म नहीं है, इतना इतना लाइट है, बहुत ज्यादा लाइट है, क्या करें, एनडी फिल्टर भी जो हमें इस्तेमाल नहीं करना है। एनडी फिल्टर होगा तो 32 को कट डाउन पे 22 ले आएंगे आप लोग, बट इफ यू डोंट हैव एनडी फिल्टर आल्सो, सो ओनली ऑप्शन इज shooting at the higher. Which combination yields the deepest depth of field? डीपेस्ट का मतलब क्या है? अब देखो ये अलग शब्द है यहां पर शब्द जो है अलग आ गया है। डीपेस्ट को वो क्या कह रहा है? शैलो। वो डीप में क्या बोल रहा है वो बेसिकली? ग्रेट। 200 mm टेलीफोटो लेंस है, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड हो गया आपका 24 पे आ गए। ठीक है, तो वाइट पूरा का पूरा। डीपेस्ट का मतलब मोर मोर मोर, इसको ब्रैकेट में लिख लो, यहाँ पे कंफ्यूजन है, ये डीपेस्ट शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मेरा मानना है। इट शुड बी मोर एक्यूरेट वर्ड। लार्ज, लार्ज होना चाहिए या ऑब्लिक मोर होना चाहिए। ये कंफ्यूजिंग वर्ड है, ऐसा कंफ्यूजिंग वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि शैलो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो ज्यादा क्लियर कट है यहाँ पर। तो इसके अंदर जो है 24 पे शूट कर रहे हैं, F16 पे कर रहे हैं, तो दोनों में डेप्थ ऑफ फील्ड आपको ज्यादा मिल जाएगी। और 5 मीटर डिस्टेंस है तो आपका डिस्टेंस भी बहुत हो गया, तो तीनों फैक्टर आपके फेवर में है। सो सम टाइम पीपल डू यूज दीज वर्ड। सो लार्ज की बात हो रही है, शैलो की बात हो रही है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। तो दिस इज कॉम्बिनेशन टू। let me reformulate with a better word for this. For the time being, let it be like this only. I'll mark it and I'll find a better word for this. Which is a common method to control exposure while maintaining a shallow depth. ये shallow से बहुत क्लियर हो जाता है कि क्या बात हो रही है। Which is a common method to control the exposure. Control the exposure. Exposure control कैसे होता है? तीन चीजों से, फिल्म स्पीड, शटर स्पीड एंड अपर्चर। ठीक है जी। तो हाउ कैन वी कंट्रोल द थिंग? दीज आर 3 फैक्टर। बट अगर उसने आपको एक और चौथा चीज दे दिया है, वो है एनडी फिल्टर, कि बहुत ज्यादा लाइट है, जैसे अभी मैंने बोला कि एनडी फिल्टर पे कुछ क्वेश्चन बनाए हुए हम लोगों ने 10-15 करीब जो है, वो भी डिस्कस करेंगे। तो एनडी फिल्टर कट डाउन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो एनडी फिल्टर भी एक तरीके से एक्सपोजर कंट्रोल करने में हमें मदद करता है। हालांकि एक्सपोजर कंट्रोल हम अपना शटर स्पीड, अपर्चर और फिल्म स्पीड से कर सकते हैं, बट एक नया फैक्टर जो है फोर। तो अगर मैं आपसे एक और क्वेश्चन बनाऊं कि हाउ मेनी फैक्टर्स, हाउ मेनी मैकेनिज्म्स आर देयर टू कंट्रोल द एक्सपोजर, तो आंसर 3 नहीं होगा। चौथा आंसर क्या है मेरे पास? एनडी फिल्टर। मेरे पास एनडी फिल्टर भी है एक्सपोजर कंट्रोल करने के लिए। 4, जैसे डेप्थ ऑफ फील्ड किसी जमाने में 3 होता था, अभी 4 हो गया है। क्यों? क्योंकि मेरे पास सेंसर भी आ गया। कुछ क्वेश्चन बनाया है मैंने सेंसर को लेके, तो मेरे पास अभी एक्सपोजर कंट्रोल करने के कितने तरीके हैं? 4। अपर्चर, शटर स्पीड, फिल्म स्पीड एंड एनडी फिल्टर। एनडी फिल्टर बहुत जमाने से है। तो अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए, हाउ मेनी मैकेनिज्म यू हैव टू कंट्रोल द एक्सपोजर, 2, 3, 4, तो करेक्ट आंसर वुड बी 4। ठीक है जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको अलग से और मार्क कर देता हूं। ठीक है जी। व्हाट इज द डेप्थ ऑफ फील्ड इंपॉर्टेंट इन प्रोडक्ट फोटोग्राफी? क्योंकि जिसका प्रोडक्ट है वो चाहता है पूरा का पूरा शार्प हो। तो पूरा का पूरा शार्प कब होगा? जब उसका पूरा प्रोडक्ट जो है फ्रंट से लेकर एंड तक जो है शार्प होगा। तो जब वो बात बोल रहा है डेप्थ ऑफ फील्ड की, व्हाई इज डेप्थ ऑफ फील्ड इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट फोटोग्राफी, इट इज अ कॉमन सेंस क्वेश्चन, क्योंकि ही वांट हिज एंटायर प्रोडक्ट टू बी सीन शार्प। सो करेक्ट आंसर इज सी। हाउ डज अपर्चर अफेक्ट बैकग्राउंड ब्लर? ठीक है जी, हमने पहले भी डिस्कस किया था, ये बैकग्राउंड ब्लर इस्तेमाल कर लिया है उसने। ये क्या है आदित्य? रिक्वेस्टिंग रिमोट कंट्रोल ऑफ योर कंप्यूटर। ये फालतू के काम मत करो, सुनो जो मैं बोल रहा हूं। गिने चुने दिन रह गए हैं, एंड दिस टाइम इट इज मोर ट्रिकियर। ओके। हाउ डज अपर्चर अफेक्ट द बैकग्राउंड ब्लर? तो जैसे ही अपर्चर ज्यादा हो जाएगी तो बैकग्राउंड शार्पनेस में आ जाएगी सारी की सारी हमारे पास।
तो लार्जर अपर्चर इंक्रीजेस द ब्लड लिखा हुआ है यहां पर, ये करेक्ट है या रॉन्ग है? लार्जर अपर्चर का मतलब क्या है? 1.4। अब ये क्लैरिटी होनी चाहिए क्वेश्चन के अंदर, हाउ डज अपर्चर अफेक्ट बैकग्राउंड? तो मेरे पास अगर 1.4 है तो बैकग्राउंड ब्लर आ जाएगी, और अगर मेरे पास f16 है तो बैकग्राउंड शार्प आ जाएगी। तो स्मॉल अपर्चर इंक्रीजेस द ब्लड, यस, क्योंकि पीछे जो है आपका डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो गया, तो डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो गया तो ब्लरनेस बढ़ जाएगी मेरी, ठीक है जी। लार्जर अपर्चर इंक्रीजेस द ब्लर, स्मॉलर अपर्चर इंक्रीजेस द ब्लर, लार्जर अपर्चर इंक्रीजेस द ब्लर। अपर्चर लार्जर में इंक्रीज नहीं होता है, क्यों? क्योंकि मेरे पास बैकग्राउंड पूरा का पूरा फोकस में आ गया। तो करेक्ट आंसर इज बी, ठीक है जी। नो इफेक्ट, इफेक्ट तो होता ही है। ब्लर ओनली अकर्स एट नाइट, ये सब बकवास है। समटाइम ऐसा आंसर नहीं देगा वो टीचर जो है आपको, और थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा पास में जो मिलता जुलता होगा वो देगा। इसमें तो क्लियर कट है कि भाई नहीं है। बट बहुत से लोग होते हैं जिनको समझ नहीं आता है, बट वो चारों में से कम 3 ऑप्शन ऐसी होंगी जहां आप थोड़ा सा सोच विचार में फंस जाएंगे। सो बी केयरफुल व्हेन यू आर चूजिंग ए आंसर। डेप्थ ऑफ फील्ड इज कंसीडर shallow when most of the image is in focus, only a small part of the image is in focus, background is sharp, नहीं बैकग्राउंड ब्लर होनी चाहिए डेप्थ ऑफ फील्ड के अंदर, कंट्रास्ट से रिड्यूस, कंट्रास्ट से कोई मतलब नहीं है। तो करेक्ट आंसर इज बी, ओनली a small part of the image is in focus। जैसे प्रोडक्ट फोटोग्राफी के अंदर हमने बात की, कभी कभी आपने देखा होगा फुल टेलीफोटो लेंस के अंदर फेस जो है फोकस में होता है, कान भी आउट ऑफ फोकस हो जाता है कई बार, दैट बिकॉज दे आर शूटिंग विद द वेरी वाइड ओपनिंग। हाँ जी, ये थोड़ा सा एक ट्रिकी क्वेश्चन है, मैंने इसको मार्क किया है। व्हाट डज यूजिंग ए टिल्ट शिफ्ट लेंस अलाउ इन टर्म्स ऑफ डेप्थ ऑफ फील्ड? तो डेप्थ ऑफ फील्ड का क्या लेना देना है टिल्ट फोकस टिल्ट शिफ्ट से, आपको ये समझ आना चाहिए पहले तो, ठीक है जी। तो होता क्या है, जब हम टिल्ट करते हैं तो उसमें फोकसिंग प्लेन जो है हमारा, जो ऊपर मर्ज हो रहा है, वो थोड़ा सा सीधा हो जाता है। तो हमारे पास कंट्रोल क्या है उसका, कर क्या रहे हैं हम लोग बेसिकली उसमें उसमें हम फोकस प्लेन जो है उसका क्रिएटिव कंट्रोल ले रहे हैं, कि वो जो पहले ऊपर से कन्वर्जिंग हो रहा था वो कन्वर्जिंग खत्म होके अब सीधा सीधा हो गया है। वाइड एंगल ओनली, मैनुअल फोकस, मोर लाइट, इनका कोई लेना देना नहीं है। तो कई बार इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है विच इज अ लिटिल ट्रिकी। What happened to depth of field when you zoom in without changing aperture? जूम इन कर रहे हैं आप तो क्या हो रहा है, बेसिकली आपका फोकल लेंथ चेंज हो रही है। जूम इन का मतलब आप टेलीफोटो जा रहे हो, पहले 50 थे, फिर 85 हो गए, फिर 100 हो गए, तो डेप्थ ऑफ फील्ड क्या हो रही है? डेप्थ ऑफ फील्ड मेरे पास कम होती जा रही है। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जिसको समझ आएगा वही आदमी इसको बोल सकता है कि जूम इन और जूम आउट में क्या मतलब होता है। जूम इन का मतलब आप पास जा रहे हैं, आपकी टेलीफोटो रेंज जो है बढ़ती जा रही है, और जैसे जैसे टेलीफोटो बढ़ता जाएगा आपके पास जो है डेप्थ ऑफ फील्ड कम होती जाएगी। सो करेक्ट आंसर इज सी। पहले भी हमने ट्रैकिंग की भी बात की थी। ट्रैकिंग के अंदर क्या होता है कि आप पास तो जाते हैं, बट आप फिजिकली पास जाते हैं चल के। जूम में क्या है कि आप वहीं बैठे हुए हो और पास जा रहे हैं, देयर इज डिफरेंस। कैमरा इज नॉट ट्रेवलिंग, कैमरा इज स्टेशनरी, बट इन ट्रैकिंग कैमरा इज मूविंग टुवर्ड्स द सब्जेक्ट एंड हेंस गोइंग क्लोज to the subject. So it give you more or less same feeling, but there is a difference. Zoom का फील अलग होता है और ट्रैक का फील अलग होता है। पता लग जाता है आपको, अब आप देखते हैं कि ट्रैक है जूम है, पता लग जाता है ना। कैसे पता लगता है वो आपको? जब पता लगता है, कैसे पता लगता है? क्यों? क्योंकि पीछे का डेप्थ ऑफ फील्ड जो है बता देता है कि बैकग्राउंड ब्लर हो रही है या नहीं हो रही। Which f stop typically gives the deepest focus in a macro photo? ये मैक्रो फोटोग्राफी का चक्करबाजी है, मैंने कल भी बताया था आपको, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये मैक्रो और माइक्रो का जो जो खेल है, कहीं माइक्रो लिखा हो और आप मैक्रो पढ़ लो, और मैक्रो को माइक्रो पढ़ लो, पूरा का पूरा एक प्ले है जिसके अंदर वो एक शब्द को गलत पढ़ लेते हैं, और फिर जो है वो पूरा प्ले जो है एंड में पता लगता है कि वो जो इनविटेशन था उसके अंदर एक गलत शब्द को पढ़ लिया, तो उसकी वजह से पूरा जो है सब्जेक्ट चेंज हो जाता है उसके अंदर। तो एक एक शब्द का चक्कर है थोड़ा सा। तो हम बात कर रहे हैं डीपेस्ट फोकस इन मैक्रो फोटो। मैक्रो फोटो के अंदर क्या है कि अब तो डेप्थ ऑफ फील्ड जो है कम होती है, और सबसे ज्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड कहाँ होगी? डीपेस्ट। शैलो का उल्टा क्या होता है? डीपेस्ट। शैलोएस्ट, डीपेस्ट।
तो यहां पर वो ये बोल रहा है कि किस में सबसे ज्यादा मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड मिलेगी, जो फोकस जो है पूरा का पूरा फ्रंट से लेकर बैक होगा। तो ये आंसर इज 22। इन लैंडस्केप फोटोग्राफी द गोल इज यूजली, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है बट कई बार इस शब्दों में खेल रहे होते हैं लोग, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। इन लैंडस्केप फोटोग्राफी द गोल इज ब्लर द बैकग्राउंड, नो। ब्लर द फोरग्राउंड, नो। मैक्सिमाइज डेप्थ ऑफ फील्ड। शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ जो है हमारा फोकस में हो, इसीलिए हम लैंडस्केप फोटोग्राफी को बोलते हैं। ये मैंने वहां पर जो क्वेश्चन आंसर रखे हुए हैं कौन से वाले, वेबसाइट के ऊपर, जो जिन लोगों ने जो इंटरेक्टिव क्लास है वो उसके लिए भी सब्सक्राइब कर लेते हैं फ्री में, जिन्होंने नहीं किया उसको कर लो। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आंसर मैंने डाले हुए हैं, छोटे 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 शॉर्ट नोट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या कुछ और। तो वहां भी एक क्वेश्चन है कि व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग यू विल टेक केयर ऑफ इन लैंडस्केप फोटोग्राफी। तो उसमें एक चीज ये भी है कि आपको लैंडस्केप फोटोग्राफी में क्या क्या तैयारी करनी पड़ेगी। उसमें से एक चीज ये भी है कि आपको डेप्थ ऑफ फील्ड का ध्यान रखना पड़ेगा। At the same aperture, which lens will give more depth of field? At the same aperture, which lens will give more depth of field? Aperture सेम है, डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा चाहिए, तो कॉमन सेंस है कि जो सबसे ज्यादा वाइड होगा वही मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा देगा। तो करेक्ट आंसर इज 35 mm। शूटिंग ए सब्जेक्ट एट इंफिनिटी विल यूजली रिजल्ट इन, अब आप शूट किस पे कर रहे हो, इनफाइनाइट के ऊपर, ठीक है जी। तो अगर इन्फिनिटी पे शूट कर रहे हो तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज है, इसके और भी ऑप्शन हो सकते थे बट मैंने 4 ही ऑप्शन रखे हैं अभी, मैं वो भी बात करूंगा। वेरी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, इन्फिनिटी पे शूट कर रहे हो, नहीं, बहुत कुछ मिलेगा मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड के अंदर। एंटायर सीन इन फोकस, यस। ब्लड सब्जेक्ट, नो। अंडर एक्सपोजर, नो। तो इन कॉन्टेक्स्ट में तो ये बी करेक्ट आंसर हो गया, बट मैं इसका कॉन्टेक्स्ट और भी चेंज कर सकता हूं इन्फिनिटी को लेके। तो आप थोड़ा सा सोचिएगा कि अगर इसी क्वेश्चन को मुझे इन्फिनिटी फोकस को लेके करना है तो और क्या क्या इसके अंदर मैं परमुटेशन कॉम्बिनेशन डाल सकता हूं अपनी अपनी एक्सरसाइज के लिए, फॉर योर ओन बेनिफिट। इसको एज ए एक्सरसाइज मटेरियल लेके आप सोच सकते हैं कि इन्फिनिटी पे अगर मैं फोकस करूं तो और क्या होगा। ठीक है जी। मैं कुछ और बताना चाह रहा हूं आपको इनफाइनाइट फोकस को लेके, दिमाग से मेरे उतर गया। हाँ, long back, there was a shot in which the subject was too far. So the focus was put at a infinity. Normally, you as a focus puller, you always look for change in a focus or to set the focus. So I was trying to think in this shot, my boss did not ask me to measure the things. So then I realized that because the subject was too far, so that person he has put the focus at infinity. सो मेजरमेंट ऑफ फोकस डिस्टेंस वाज नॉट रिक्वायर्ड। इन्फिनिटी को थोड़ी मेजर करोगे जाके तुम। इन्फिनिटी क्या होता है, किसी भी लेंस के लिए, ये फिजिक्स का टर्म है इन्फिनिटी, मैथमेटिक्स का टर्म है बेसिकली, जो फिजिक्स में भी इस्तेमाल हो सकता है। तो इन्फिनिटी क्या है, थोड़ा सोचना। अभी थोड़ा ब्रेक के बाद 10 मिनट के बाद आपसे डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, और आई विल गिव यू अ वेरी वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ दिस वर्ड कॉल्ड इन्फिनिटी। ये मेरा सबसे फेवरेट वर्ड है, मैथमेटिक्स में बहुत इस्तेमाल होता है, फिजिक्स में बहुत इस्तेमाल होता है, और इसको समझना बहुत जरूरी है। हालांकि तुमसे पूछा नहीं जाएगा वो पॉइंट ऑफ व्यू से, बट मैं फिर भी तुम्हें थोड़ा सा बताऊंगा। सो विल मीट आफ्टर 10 मिनट्स। फॉर द 10 मिनट विल कॉल, विल टेक ऑफ। Okay, guys, we are back. So we had discussed till 57. Now we are again talking about the 58. How does subject movement affect depth of field? Question is little tricky, but alternatives give you the clue. It does not affect the depth of field. कोई आदमी चल रहा है इधर से उधर, ठीक है जी, अगर वो आदमी कैमरे के पास आ रहा है या कैमरे से दूर जा रहा है, ठीक है, तो ही माइट गो आउट ऑफ फोकस एंड फोकस, बट ओवरऑल जो डेप्थ ऑफ फील्ड है एक पर्टिकुलर अपर्चर, शटर स्पीड और फिल्म स्पीड या उसके ऊपर तो कोई असर नहीं पड़ेगा उसका।
तो अगर जोन ऑफ शार्पनेस मेरा उतना ही है, उसमें कुछ चल रहा है आगे पीछे इधर उधर मूवमेंट है, अब ये सब्जेक्ट मूवमेंट बता नहीं रहा सब्जेक्ट मूवमेंट किधर है, टुवर्ड्स कैमरा, अवे कैमरा, ऑन द सेम प्लेन, तो ये बस यही बोल रहा है मूवमेंट है। हाउ डज द सब्जेक्ट मूवमेंट अफेक्ट डेप्थ ऑफ फील्ड? इट इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, इट डज नॉट अफेक्ट डेप्थ ऑफ फील्ड, इट अल्टर बैकग्राउंड ब्लर। क्योंकि वेग स्टेटमेंट है तो मैं कोई डेफिनेटली कोई चीज नहीं बोल सकता हूं। Till I have a very strong statement, very clear statement, I will not be able to answer. So question is vague. That's why the answer correct is it does not affect depth of field. अगर वो क्वेश्चन ऐसे बनता, हाउ डज द सब्जेक्ट मूवमेंट कमिंग टूवर्ड्स द कैमरा वुड अफेक्ट फोकल प्लेन? यस, फोकल प्लेन चेंज होगा क्योंकि फोकस चेंज होगा, उसका फोकस चेंज करना पड़ेगा। बट अगर वो पास भी आ रहा है मान लीजिए और दूर भी जा रहा है, तो मैंने जहां फोकस रखा हुआ है उसके हिसाब से डेप्थ ऑफ फील्ड मेरी रहेगी। तो मैं फोकस चेंज नहीं कर रहा हूं तो मेरी डेप्थ ऑफ फील्ड चेंज नहीं होगी। डेप्थ ऑफ फील्ड चेंज होती है फोकस से, मैंने पहले ही बताया था, सब्जेक्ट टू कैमरा। अगर सब्जेक्ट मेरा कैमरे के पास आ गया और मैंने फोकस चेंज कर दिया तो डेप्थ ऑफ फील्ड चेंजेस। बट सब्जेक्ट गोज अवे एंड आई आल्सो चेंज माय फोकस, देन आल्सो डेप्थ ऑफ फील्ड चेंजेस। बट ही सिंपली सेज subject movement where parallel movement, little bit movement, further movement, overall depth of field would remain same because I have not shifted my focus. If I shift my focus, then my depth of field would vary. अब ये स्मार्टफोन जो है, why do smartphone cameras have large depth of field? इसके बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे नहीं, मतलब दो ही मेन कारण है इसके अंदर। Why do smartphone cameras often have the large depth of field? Because of simple use, very small sensor. अभी सेंसर साइज का हम बात करेंगे नीचे जाके। एंड शॉर्ट फोकल लेंथ, मतलब 20-18 mm। अगर आप आज थोड़ा सा रिसर्च करें उसके ऊपर, फोकल लेंथ ऑफ स्मार्ट थिंग। अब ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, बट जिसको नहीं पता वो तुक्का लगाएगा तो फंस जाएगा। अगर मैं इसे अल्टरनेटिव चेंज कर दूं, मान लीजिए वेरी स्मॉल सेंसर की जगह मैं लिख दूं वेरी लार्ज सेंसर, या वेरी स्मॉल सेंसर एंड लार्ज फोकल लेंथ, तब गलत हो जाएगा वो। ठीक है जी। आजकल के कैमरा में 3-4 अलग अलग लेंसेज लगे होते हैं, दैट इज द इंप्रूवमेंट, बट अर्लियर इफ यू लुक एट इट देयर यूज्ड टू बी ओनली वन लेंस। तो करेक्ट आंसर इज बेसिकली वेरी स्मॉल सेंसर एंड शॉर्ट फोकल लेंथ। सेंसर साइज का आज बात करेंगे खड़ा कर, जल्दी से हम लोग थोड़ा पहुंच जाते हैं वहां पे। इन मैनुअल फोकस मोड डेप्थ ऑफ फील्ड हेल्प्स यू बाय, मैनुअल फोकस मोड का मतलब यह है कि मैं डिसाइड करूंगा कि मुझे कहां पर फोकस रखना है, ऑटो फोकस मोड नहीं है। तो रिड्यूस द एपर्चर, एक्सपोजर, एक्सपोजर से क्या लेन देना है यहां पर, वो तो जो एक्सपोजर है इट विल रिमेन सेम ओनली। प्रोवाइडिंग फोकस टॉलरेंस, यस। क्यों? क्योंकि मैं फोकसिंग जो है, अगर मेरी लार्ज लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड है मान लीजिए, तो फोकस में अगर थोड़ा बहुत आउट ऑफ फोकस भी गया मेरा फोकसिंग के टाइम में तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेप्थ ऑफ फील्ड बहुत है मेरे पास। चाहे वो फोकसिंग मैनुअल कर रहा हूं या रिंग से कर रहा हूं, फोकस तो मैं कर रहा हूं क्योंकि कैरेक्टर चेंज हो रहा है। सो इन मैनुअल फोकस मोड डेप्थ ऑफ फील्ड हेल्प्स यू बाय प्रोवाइडिंग ए फोकस टॉलरेंस। थोड़ा बहुत फोकस अगर आउट चला गया, फोकस पुलर ने ठीक से नहीं किया और मेरे पास लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड है, तो मुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। दिस इज एन एडवांटेज ऑफ हेल्प्स यू टू गेट द लार्ज लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड। कभी कभी हम लोग बोलते भी हैं जब कोई कैरेक्टर चल के आ रहा है तो फास्ट ना चल के आए जब हम फोकस पुलिंग कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें फोकस कई बार आउट चला जाता है, वी आर नॉट एबल टू प्रिसाइजली डू द फोकस। दैट समटाइम वी कैन रिक्वेस्ट द आर्टिस्ट आल्सो टू वॉक लिटिल स्लो इफ ही इज वॉकिंग वेरी फास्ट। बट अगर वो फास्ट ही मोशन है तो क्या करोगे? तो आपके पास कोई अल्टरनेटिव नहीं। वाइल्ड लाइफ पोर्ट्रेट फोटोग्राफी, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड हेल्प्स टू इंक्लूड बैकग्राउंड डिटेल, हमें चाहिए ही नहीं। कीप एवरीथिंग शार्प फोकस, वो भी नहीं चाहिए क्योंकि जो मेन ऑब्जेक्ट है हमारा वाइल्ड लाइफ सब्जेक्ट, उसको बात करनी पड़ेगी। आइसोलेट द सब्जेक्ट करना है, यस। इंक्रीज डायनेमिक रेंज, डायनेमिक रेंज तो हमने आपको बात की कि उसका एक्सपोजर जोन है। एक्सपोजर जोन की बात जब कर रहे हैं तो उसमें नहीं होता है एक्सपोजर जोन का, उससे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उसमें कितना स्टॉप अंडर जाएगा कितना स्टॉप ओवर जाएगा उसके ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है जी। कैमरा बंद करके घूमने से एफटीआई में सिलेक्शन नहीं होगा, ये ध्यान रखना। मैं बार बार बोल रहा हूं,
जब तक शक्ल नहीं दिखाओगे, तब तक प्रूव नहीं करोगे कि 2 घंटा तुम यहां बैठे हुए हो, तब तक सिलेक्शन नहीं होगा। तुमसे बड़े बड़े तुर्रम खान लोग बैठे हुए हैं जो पिछले 1-1 साल से तैयारी कर रहे हैं। डोंट बी अंडर द इंप्रेशन कि यू हैव पेड सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी एंड यू आर अटेंडिंग दिस क्लास, इट विल गेट यू इनसाइड। नो, इट विल नॉट गेट यू इनसाइड. You will still be standing outside. Like I know many people who have joined the classes, but they could not crack it. Cracking will happen those who are serious. If you can't sit for 2 hours, forget about it. You may not like it, but I will say that. Okay. Shooting at, I could have appointed Kanhaiya Kishore to take the class and relax myself for 2 hours and do something more important than teaching you people. And that I have been doing for last 4 years. Look at the previous videos. There is not even a single class except 4 special classes which I conducted. There is no class. But if I am taking a pain and if you are not willing to take the pain, it is your loss. Keep walking around, keep sleeping over there in the bed and switch off your video and just dream that one day you will be sitting under the wisdom tree. That day will not come. Shooting at f1.2 in daylight requires fast shutter, and today I'll give a home assignment also for tomorrow so that only those people would be allowed to enter in the class which will be assignment oriented, and there will be a question and there will be an answer descriptive, not ABCD. Okay. So shooting at f1.2 in daylight often requires, अब ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। शटर स्पीड ज्यादा चाहिए मुझे क्योंकि डे लाइट है, तो 1.125 और 500 ASA का शटर स्पीड चाहिए होता है, ठीक है जी। लो ISO 100 ASA 50 ASA का फिल्म स्पीड जनरली हम लोग इस्तेमाल करते हैं डे लाइट के अंदर। तो अगर आप थोड़ा सा भी कॉमन सेंस भी लगाओगे तब भी इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो कि नॉर्मली जो है 1/125 500 शटर स्पीड चाहिए, 250 का शटर स्पीड चाहिए होता है, और हमारा 50 और 100 ASA चाहिए होता है, विच इज कंसीडर एज ए लो ISO, ठीक है जी। स्लो शटर स्पीड तो कभी चाहिए ही नहीं होता क्योंकि ब्लर हो जाएगा सब्जेक्ट आपका, और वैसे भी ओवर एक्सपोज हो जाएगा अगर आप स्लो शटर स्पीड पे करोगे। फ्लैश की भी जरूरत नहीं होती है, जरूरी नहीं है मैं फ्लैश इस्तेमाल करूं, आउटडोर में लोग इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, कई बार मैंने देखा है, बहुत बार 90% टाइम दे डोंट यूज इट, वेरी रेयरली दे यूज इट। ओवर एक्सपोजर का हो सकता है, अगर वो तब डिपेंड करेगा जब आप एक्सपोजर सेट कर रहे हो, बट ये जनरल तरीके से बात हो रही है। वो बोल रहा है कि फुल वाइड में मैं शूट कर रहा हूं और डे लाइट है, तो ये कॉमन सेंस है कि मेरे पास फाइन ग्रेन फिल्म चाहिए और मुझे फास्ट शटर स्पीड चाहिए। शूटिंग एट f1.2 इन नाइट, अभी उसी क्वेश्चन को मैंने थोड़ा उलझाया कि शूटिंग एट f1.2 इन नाइट ऑफन रिक्वायर स्लो शटर स्पीड चाहिएगा। क्यों? क्योंकि मेरे को तो एक्सपोजर मिलने वाला नहीं है, और एक्सपोजर मिलने वाला नहीं है तो मैं क्या करूंगा, हाई ISO भी इस्तेमाल करूंगा। तो करेक्ट आंसर वुड बी बी। इंक्रीजिंग ISO while keeping other setting the same. Increasing ISO while keeping other setting the same will, अब इसमें कंडीशन रख दी उसने कि आपका ISO जो है, फिल्म स्पीड जो है सेम है। कीपिंग ISO, इंक्रीजिंग ISO मतलब 100 ASA का फिल्म है, मैंने 200 ASA पे चला गया, कीपिंग अदर सेटिंग सेम, व्हाट क्या होगा कि मेरी फिल्म ज्यादा सेंसिटिव हो गई। मैंने 100 से 400 के ले लिया तो मैंने 2 स्टॉप का गेन किया। तो इसका तरीका क्या होता है समझने का, +2 और -2 करिए आप। ये मैंने एक्सपोजर वाला क्वेश्चन जब मैं नेक्स्ट टाइम बनाऊंगा तो उसमें ये इस तरीके से ही किया जाता है। तो अगर मान लीजिए मेरा 100 ASA का फिल्म था और 100 ASA से मैं चला गया किसके ऊपर, 400 पे, तो मैंने क्या किया, 100 से 200 पे गया तो +1 मेरा सेंसिटिविटी बढ़ गया, और 400 पे गया तो मैं +2 हो गया। तो +2 जो है मैंने जो है सेंसिटिविटी मेरी बढ़ गई। तो इंक्रीजिंग ISO वाइल कीपिंग अदर सेटिंग द सेम, अदर सेटिंग क्या है मेरे पास, एपर्चर का सेटिंग है, मेरा फिल्म स्पीड का सेटिंग है, फिल्म स्पीड में चेंज कर रहा हूं शटर स्पीड, तो शटर स्पीड और अपर्चर मेरी वही के वही है, ठीक है जी। तो 2 स्टॉप मैंने गेन कर लिया, तो मैंने क्या करा बेसिकली, इंक्रीज डेप्थ ऑफ फील्ड, नो, क्योंकि डेप्थ ऑफ फील्ड तो वहां पर कोई लेना देना नहीं है, डेप्थ ऑफ फील्ड का कोई और फैक्टर है। बी, डिक्रीज डेप्थ ऑफ फील्ड, कोई लेना देना नहीं है। नॉट अफेक्ट द डेप्थ ऑफ फील्ड, क्योंकि उसमें ISO चेंज कर रहा हूं, मैं ISO चेंज कर रहा हूं, तो मैं बाकी का उससे कोई लेना देना नहीं है अगर मैं उस तरीके से सोचूं। बट अगर मैं ISO चला गया उधर, नॉट अफेक्ट द डेप्थ ऑफ फील्ड, अगर मैं 100 से 200 गया तो मैंने बहुत सी चीजें की हैं
वो एक तो ये किया है कि मैंने अपना एक्सपोजर गेन किया है, बट यहाँ एक्सपोजर गेन का कोई क्वेश्चन नहीं है, यहां पर एक्सपोजर गेन का कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो ना तो बढ़ रही है ना घट रही है, अगर मैं उस तरीके से देखता हूं। तो इसमें अगर करेक्ट आंसर ये बोल रहा है नॉट अफेक्ट द डेप्थ ऑफ फील्ड, तो ये करेक्ट है, क्योंकि मैं उसी बात को दूसरे तरीके से कह रहा हूं, ना तो इंक्रीज हो रही है ना डिक्रीज हो रही। तो क्या हो रहा है, अगर ना तो कोई चीज बढ़ रही है ना कोई चीज कम हो रही है, तो हो क्या रहा है वहां पे, कुछ नहीं हो रहा। तो नॉट अफेक्ट द डेप्थ ऑफ फील्ड, ब्लर द सब्जेक्ट तो वैसे ही आउट है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, उसी बात को उसने तीसरे सेंटेंस में बोल दिया, ना तो इंक्रीज हो रही ना डिक्रीज हो रही, तो इंक्रीज भी नहीं हो रही है डिक्रीज भी नहीं हो रही, तो क्या हो रहा है, इट डज नॉट अफेक्ट द डेप्थ ऑफ फील्ड। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, ध्यान रखना। A photographer wants the whole flower in focus at a closer range, वही हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, मैक्रो फोटोग्राफी की बात हो रही है। बेस्ट सेटिंग के अंदर क्या है कि मुझे डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा चाहिए, तो वहां पे मैक्रो लेंस चाहिएगा मुझे 100 mm का, मान लीजिए टेलीफोटो टाइप का, और मैक्रो इसलिए क्योंकि मुझे क्लोज वाले में काम करना है। 100 mm में शायद मेरे को फोकसिंग डिस्टेंस ना मिल पाए, ये काम 100 mm टेलीफोटो से भी कर सकते हो, आप लोग कर सकते हो, बट ये मैक्रो क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है, मैक्रो इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है कि मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज साइज की बात हो रही है, कि अगर आप पास चले गए तो 1:1 का मैग्निफिकेशन चाहिए मुझे। एक छोटा सा कॉइन है तो वो मुझे उतने ही साइज का कॉइन चाहिए। अगर आप जूम लेंस इस्तेमाल करेंगे तो हो सकता है आपको उतना क्लोजअप ना मिले, इमेज का जो मैग्निफिकेशन है वो 1:1 में ना मिले, पहली बात। दूसरी बात, डेप्थ ऑफ फील्ड की बात हो रही है, यहाँ पे F16 होगा, तो यहाँ पर मुझे बेस्ट जो है मिलेगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे डिस्क्रिप्टिव में, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन मैक्रो लेंस, माइक्रो लेंस और जूम लेंस, एंड व्हाट इज द एडवांटेज एंड व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस। इसको थोड़ा कंपैरेटिव स्टडी आप अपने हिसाब से बना लीजिएगा। इन ए फुल डे लाइट ए फोटोग्राफर वांट शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है उसके पास, मैंने पहले भी बताया था आपको कि वो शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए अभी यहाँ फोटोग्राफर डाल दिया है उन लोगों ने, वहां एक्सपोजर की बात की थी। अब एक्सपोजर की बात करो या फोटोग्राफर की बात करो, बात एक ही है, ठीक है जी। तो बात एक क्यों है, क्योंकि हमें चाहिए क्या, डेप्थ ऑफ फील्ड कम चाहिए। डेप्थ ऑफ फील्ड कम चाहिए तो उसके लिए मैं एक्सपोजर को फुल वाइड पे लाने के लिए मैं क्या करूंगा, एनडी फिल्टर लगाऊंगा और वाइड पे जाऊंगा। जैसे ही मैं वाइड पे जाऊंगा तो मेरा एक्सपोजर बढ़ जाएगा, बढ़ने के लिए, कम करने के लिए कि मैं क्या करूंगा, एनडी फिल्टर। Narrow aperture in low light requires, narrow aperture मतलब f11 and 16 requires higher shutter speed, low ISO, tripod, हाँ ट्राइपॉड और हायर ISO to avoid the blur। ट्राइपॉड होगा आपके पास तो कैमरा हिलेगा नहीं, क्योंकि लो लाइट कंडीशन है, ISO हाई है, तो आपको थोड़ी बहुत शटर स्पीड उसमें मिल जाएगी। और थोड़ा अगर चाहते हो तो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए तो आप अपर्चर बढ़ा सकते हो, बट वो तभी होगा जब आपके पास हायर ISO फिल्म होगी, मतलब हाई सेंसिटिविटी फिल्म होगी। तो सी इज द बेस्ट रिक्वायरमेंट। डेप्थ ऑफ फील्ड प्रीव्यू बटन ऑन DSLR इज यूज टू, मैंने पहले दिन बताया था आपको, ये क्वेश्चन मैंने फॉर्मुलेट कर दिया है जस्ट टू मेक योर लाइफ इजियर, कि DSLR प्रीव्यू बटन क्या करता है कि जब आप कैमरे में लगा होता है लेंस तो फुल वाइड ओपनिंग होती है उसके अंदर, क्यों, क्योंकि आपको फोकस करना होता है। फोकस करने के लिए आपका अपर्चर अगर खुला होगा तो ज्यादा लाइट आएगी। इफ द लाइट इज मोर देन यू कैन इजीली फोकस, यू कैन प्रिसाइजली फोकस, but you are shooting at f11, so sometimes you manually also want to check, so you press your depth of field preview button and you can feel the actual depth of field. So this is to show the actual depth of field at the set aperture। 5.6 पे कितना होगा आपको पता लग जाएगा मैनुअली, आंख से भी आप महसूस कर सकते हैं। जब आप डेप्थ ऑफ फील्ड प्रीव्यू बटन को दबाएंगे तो आपको अंधेरा अंधेरा हो जाएगा उसके अंदर, एंड यू वुड बी एबल टू सी हाउ मच एरिया इज इन फोकस बिफोर एंड आफ्टर, यू कैन फील इट। आपने कभी किया है कि नहीं किया, दैट आई डू नॉट नो, बट इट इज पॉसिबल। विच सिनेरियो हैज द डीपेस्ट फोकस जोन, विच सिनेरियो हैज द डीपेस्ट फोकस जोन, हमने बात की थी पहले भी आपसे, ये दोबारा से उसी को दूसरे तरीके से बोल रहा है वो, कि यहां पे अगर आप देखेंगे तो दो अपर्चर दी हुई है, 24 और 2.8, 24 और 16, तो दोनों के अंदर जो है वाइडेस्ट है, वो तो क्लियर हो गया, चलो मेरे को, बट वो अगर मुझे करेक्ट नहीं लग रहा मुझे क्वेश्चन, एक मिनट देखने दीजिए, ज्यादा किसके अंदर जो है डेप्थ ऑफ फील्ड आएगी मेरे पास, डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा किस में आएगी, जिसके अंदर अपर्चर ज्यादा होगा, तो f2.8 में डेप्थ ऑफ फील्ड कम आएगी मेरे पास, 24 है वो तो ठीक है, बट
सबसे ज्यादा डेप्थ ऑफ फील्ड किसमें आएगी? शैलो का उल्टा होता है डीप फोकस, तो डीपेस्ट, शैलो एंड डीपेस्ट, इट मींस F16। जब भी आपको कहीं चेक करना हो, शैलो को बीच में लेके आ जाओ और आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या ये वही वर्ड है जो शैलो से मिलता जुलता है या कुछ अलग है। शैलो इज हॉलो काइंड ऑफ ए थिंग विच इज लेस, डीप मीन्स मोर। समटाइम देयर आर कंफ्यूजिंग वर्ड्स, सो बी केयरफुल। इन वीडियो, अब वही वाली बात है, उन्होंने लिख दिया है बट कोई जरूरी नहीं है। बट वीडियो लिखते ही क्या होता है, मोशन चालू आ जाता है। स्टिल फोटोग्राफी में क्या है, मोशन नहीं है आपके पास। इन वीडियो, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड इज ऑफन यूज्ड टू कीप एवरीथिंग इन फोकस, emphasize the subject and the guide viewer eyes, जो हमने पहले भी बात की थी दूसरी तरीके से। compensate the for low light, no. increase resolution, no. it emphasize the viewer's guide. Which of the following lens characteristic lead to a deep depth of field, which means large depth of field? तो वो पहले भी बात की हमने, उसको दूसरे तरीके से है शॉर्टर फोकल लेंथ एंड हायर एफ नंबर। एक मिनट, गड़बड़ हो रहा है इसके अंदर। Which of the following lens, क्या लिख दिया मैंने, which of the following lens characteristic lead to a very deep depth of field? Deep means shallow and deep, उल्टा। तो डीप डेप्थ ऑफ फील्ड कब आएगा आपके पास? जब लार्ज अपर्चर होगा, लॉन्ग फोकल लेंथ होगी, शॉर्ट फोकल लेंथ एंड हायर अपर्चर। शॉर्ट फोकल लेंथ, ये कॉन्ट्रेरी है ये बेसिकली, यहाँ पे हायर अपर्चर नहीं होना चाहिए अगर आप शैलो की बात कर रहे हैं, और अगर आप लार्ज की बात कर रहे हैं तो करेक्ट फॉर्मुलेशन नहीं है क्वेश्चन का। Which of the following lens characteristic lead to a very deep depth of field? मतलब लार्ज डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए मुझे, शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं चाहिए। तो उसके लिए लार्ज अपर्चर हो सकता है मेरे पास, लॉन्ग फोकल लेंथ हो सकती है मेरे पास। लॉन्ग फोकल लेंथ में डेप्थ ऑफ फील्ड नहीं मिलेगी, लार्ज अपर्चर में मिलेगी। और अगर मैं यहाँ पे क्या अल्टरनेटिव रखूं, शैलो, लॉर्ड नहीं, इसमें आना चाहिए लोअर एफ नंबर, लोअर एफ नंबर, मतलब 1.4 और F2 आ गया तो भी हमें को नहीं मिलेगा, क्योंकि शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है। वाइड सेंसर, ये बड़ा वेग वर्ड है वाइड सेंसर, ठीक है जी। और इसमें सेंसर साइज अगर मैं लिखूं तो ज्यादा करेक्ट होगा, तब जाके वो आंसर ज्यादा करेक्ट है, क्योंकि सेंसर की हम अभी बात करेंगे थोड़ा। सेंसर, बस सेंसर लिख दिया। सेंसर साइज, साइज भी लिख दिया, तो साइज में भी नहीं पता लग पा रहा है कि लार्ज साइज सेंसर बोल रहा हूं मैं, स्मॉल सेंसर बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं। लार्ज सेंसर साइज पे डेप्थ ऑफ फील्ड डिपेंड करती है, बट मैंने यहाँ सेंसर साइज नहीं बताया आपको कि सेंसर साइज मेरा फुल फ्रेम है या क्रॉप है। तो सेंसर साइज एक वेग वर्ड है। अब नाउ द करेक्ट आंसर इज द ए, लार्जर अपर्चर। आंख बंद करके मत सुनते रहो, खुद भी खोपड़ी लगाओ थोड़ी सी। लार्जर अपर्चर नंबर होगा ना सर? लार्जर अपर्चर का मतलब है नंबर लार्ज अपर्चर नंबर, मतलब F16 कह लीजिए यहाँ पे, या वो फिर वो F16 लिखने में फिर वो वेगनेस खत्म हो जाती है, तो नंबर ही बोलेगा यार। तो लार्ज अपर्चर नंबर, देन इट विल बी ए करेक्ट अल्टरनेटिव। अपर्चर नंबर आ गया, लॉन्ग फोकल लेंथ आ गई, लोअर एफ नंबर आ गया, लोअर और लार्ज वहां पे आ गया, और सेंसर साइज आ गया। नाउ इट इज ए करेक्ट फॉर्मुलेशन, अर्लियर इट वाज लिटिल वेग। A telephoto lens compresses perspective and gives shallow depth of field, as we have discussed many a times. अब यहां पर उसने perspective इस्तेमाल किया है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, compress the perspective। तो कंफ्यूज मत हो जाना, जैसे जैसे अलग अलग शब्द कई बार इस्तेमाल कर लेता है एग्जामिनर, तो यू शुड बी वेरी क्लियर व्हाट एग्जैक्टली ही वांट टू से। सो टेलीफोटो लेंस कंप्रेस पर्सपेक्टिव एंड गिव्स अ शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा समझना पड़ेगा आपको इसको। यू फोटोग्राफ ए पर्सन 3 मीटर अवे एट 2.8 and 85 mm। तो क्या बात हो रही है, फुल वाइड है करीब करीब, टेलीफोटो भी है लेंस मेरे पास, और 3 मीटर भी है। टू इंक्रीज फोकस जोन, इंक्रीज फोकस जोन का मतलब है मैं अपना डेप्थ ऑफ फील्ड को बढ़ाना चाह रहा हूं। उसने ये नहीं बोला डेप्थ ऑफ फील्ड बोला, तो उसने बोला टू इंक्रीज फोकस जोन, मैं क्या करूं, डिक्रीज साइज। अगर मैं डिक्रीज कर दूंगा साइज तो मेरा डेप्थ ऑफ फील्ड कम हो जाएगा। यूज लॉन्गर लेंस, तो भी डेप्थ ऑफ फील्ड मेरा कम हो जाएगा। स्टॉप डाउन अपर्चर, स्टॉप डाउन मतलब कट डाउन अपर्चर। तो जैसे ही मैंने अपर्चर बढ़ाया 5.6, 8, 11 किया, तो मेरा डेप्थ ऑफ फील्ड बढ़ जाएगा, और उसकी वजह से इंक्रीज फोकस जोन।
ये इंक्रीज फोकस जोन जो है दूसरा नाम इस्तेमाल किया गया है डेप्थ ऑफ फील्ड के लिए, ये ध्यान रखना। ऐसे करीब करीब वेग 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 वर्ड ढूंढ ढांड के जाते हैं लोग, तो उसकी वजह से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। विच सिचुएशन वुड बेनिफिट फ्रॉम डीप डेप्थ ऑफ फील्ड? शैलो का उल्टा होता है डीप, हमने अभी बात की है आपको। जहां पे डीप डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए आपको, तो इसमें अलग 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 आंसर दिए हुए हैं। कहां पे सबसे ज्यादा मिल चाहिए हमें? इंटीरियर आर्किटेक्चर या आउटडोर आर्किटेक्चर। इंटीरियर आउटडोर में तो अपर्चर बहुत मिलता है हमको, पर इंटीरियर के अंदर जो है अपर्चर नहीं मिलता है। तो अगर इंटीरियर में अगर आपको आर्किटेक्चर, तो आर्किटेक्चर है, तो अगर आपको डेप्थ ऑफ फील्ड अंदर चाहिए तो सी जो है इंटीरियर आर्किटेक्चर शॉट जो है उसमें चाहिए। नाइट वाइट में तो वैसे ही कुछ नहीं होता है, ब्लर फोटोग्राफी का भी आइडिया नहीं, कंसर्ट फोटोग्राफी से क्या मतलब है। कुछ वेग्स जो टर्म होते हैं यू कैन डिलीट देम इजीली। At F6, some time to make the question paper simple, question examiner can also give a question like this. At F11 with a 50 mm lens, subject at 10 meter will, देखो ये नंबर वंबर दे रखे होते हैं ना, कई बार वैसे ही कंफ्यूज करने के लिए लिखे होते हैं। असली चीज को पकड़ लो उसके अंदर। At F11 50 mm lens, normal lens है, subject at 10 meter will be sharply isolated, in sharp focus with surrounding, फुल्ली ब्लर्ड, आउट ऑफ फोकस। फुल्ली ब्लर्ड और आउट ऑफ फोकस तो वैसे ही आउट हो जाते हैं। जब आप फोटोग्राफ लोगे तो कहीं ना कहीं तो फोकस करोगे उसके अंदर। तो इसमें क्या है, 50 mm लेंस है तो नॉर्मल लेंस है ये, ठीक है जी। तो अगर आपने नॉर्मल लेंस के ऊपर, नॉर्मल लेंस में कुछ आसपास भी इधर उधर फोटो, टेलीफोटो तो है नहीं कि पूरा का पूरा ब्लर हो जाएगा, तो जो सब्जेक्ट है वो आपका फोकस में होगा और सराउंडिंग भी थोड़ी बहुत जो है फोकस में आएगी। शार्पली आइसोलेटेड तो नहीं हुआ, क्यों? क्योंकि शार्पली आइसोलेटेड के लिए आपको 100 mm 200 mm उस टाइप का लेंस चाहिए। तो 50 mm में थोड़ा बहुत आसपास की चीजें भी दिखाई देती है, द वे नॉर्मल आई सीज, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज नॉर्मल लेंस। टू सिमुलेट, ये सिमुलेट वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द टाइम सिनेमाटोग्राफर इनसाइड द स्टूडियो सिमुलेट द आउटडोर लाइटिंग, सिमुलेट वेराइटी ऑफ लाइटिंग। सिमुलेट का मतलब है आप आर्टिफिशियली उस चीज को क्रिएट कर रहे हैं, ये स्टिमुलेट नहीं है। कंफ्यूज मत हो जाना स्टिमुलेट और सिमुलेट से। दोज टू वर्ड्स लुक सिमिलर बट दे हैव ए डिफरेंट मीनिंग। To simulate a large aperture effect on a smartphone photography, manufacturer uses, ये AI और डेप्थ मैपिंग सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये थोड़ा चक्करबाजी है, बट बाकी के जो है रियल अपर्चर नहीं है, तो इसलिए सिमुलेट की बात कर रहा है। वहां पे रियल अपर्चर होती तो बड़ी मुश्किल हो जाता, आप चेंज कर सकते थे अपर्चर, आप चेंज नहीं कर पाते हैं। आप अंदर से जाके उसको करते हैं, आपने देखा होगा, ब्राइटनेस को बढ़ाते हो, कई बार ब्राइटनेस को कम करते हो स्क्रीन से, ठीक है जी। तो वहां पे क्या है, कोई अपर्चर नहीं लगी हुई है कि अपर्चर चेंज हो रही है वहां पे जाके, बट वो मैपिंग का मतलब वही है कि वो वर्चुअल तरीके से उसको कंट्रोल कर रहा है, टू गिव यू दैट काइंड ऑफ ए फीलिंग। जो लार्ज अपर्चर पे देख, आपने कभी सोचा होगा कि कोई भी फोटो लो मोबाइल फोन से, वो बहुत सब कुछ शार्प फोकस में दिखाई देता है, क्यों? उसका एक रीजन है, क्योंकि दे ट्राई टू हैव मोस्ट ऑफ द टाइम यू नीड एवरीबडी इन द फोकस। ग्रुप फोटोग्राफ ले रहे होते हो जनरली आप, इस टाइप का। वाई सेंसर की भी बात करेंगे अभी, नीचे जाके जल्दी से, क्या टाइम अभी है हमारे पास? वाई इज एफ 1.2 नॉट ऑलवेज शार्प अक्रॉस द फ्रेम? बहुत सिंपल सा रीजन है कि शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड होती है और उसकी वजह से हल्का सा कई बार सॉफ्टनेस आ जाता है। आपने देखा होगा फेस अगर फोकस में तो कान कई बार फोकस से गायब हो जाता है, ठीक है जी। तो थोड़ी सी सॉफ्टनेस जो है फुल वाइट के ऊपर आ जाती है। डिस्टॉर्शन का उस तरीके से लेना देना नहीं है अपर्चर से, है थोड़ा बहुत बट उतना नहीं है जितना कि डेप्थ ऑफ फील्ड का है। डिस्टॉर्शन का लेना देना है बेसिकली कुछ और चीजों से जो हम डिस्कस करेंगे अभी लेंस डिस्टॉर्शन के अंदर। विच शूटिंग मोड ऑफन कंट्रोल्स डेप्थ ऑफ फील्ड ऑटोमेटिकली? ऑटोमेटिकली कैसे चेंज होगा? अगर आप प्रोग्राम मोड पे लगा देते हो तो ये तो पता नहीं लगा कि प्रोग्राम ने क्या करा। प्रोग्राम वाला शटर स्पीड भी चेंज कर सकता है, अपर्चर भी चेंज कर सकता है और फिल्म स्पीड भी चेंज कर सकता है। फिल्म स्पीड से तो कोई लेना देना नहीं है हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड का, ठीक है जी, और शटर स्पीड से भी लेना देना नहीं है हमारा। थोड़ा सोचिए, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, कि हमारा डेप्थ ऑफ फील्ड से लेना देना ना तो अपर्चर से है, सॉरी, ना तो फिल्म स्पीड से है और ना ही हमारा शटर स्पीड से। तो दो चीज तो मेरी गायब हो गई। अब तीसरी चीज, प्रोग्राम में तो तीसरी चीज और होती है, तो प्रोग्राम में मैं डाल दूंगा तो कोई भी चीज कंट्रोल कर सकता है, ठीक है जी। तो प्रोग्राम मोड पे तो चलेगा नहीं, मैनुअली में अगर करना है तो कर सकते हो मैन्युअली भी आप। विद शूटिंग मोड
ऑफन कंट्रोल डेप्थ ऑफ फील्ड ऑटोमेटिकली। ये वर्ड इसने इस्तेमाल कर दिया है ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली का मतलब अपने आप डिसाइड करेगा, आप नहीं डिसाइड करेंगे। मैनुअल मोड में तो आप डिसाइड करते हैं, कैमरा तो डिसाइड नहीं करते हैं। आप जो डिसाइड करते हो वहीं पे कैमरा सेटिंग होती है। तो मैनुअल इसलिए गायब हो गया, ठीक है जी। और प्रोग्राम में इसलिए गायब हो गया कि दो फैक्टर और हैं, पता नहीं कौन सा चेंज कर दे। तो केवल और केवल अपर्चर प्रायोरिटी पे आप शूट करते हैं, तभी आप डेप्थ ऑफ फील्ड को कंट्रोल करते हैं कि मुझे तो F8 वाली चाहिए या 11 पे चाहिए या बिल्कुल शैलो चाहिए। आपको डिसाइड करना है, उसके हिसाब से कैमरा जो है आपकी फिल्म स्पीड जो फिक्स होती है नॉर्मली, उसके हिसाब से आपको शटर स्पीड दे देता है। ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है इसमें कि अगर आपने अपर्चर प्रायोरिटी में यूज कर रहे हैं आप, तो कैमरा आपको क्या बताएगा। कैमरा आपको, आपने शटर स्पीड भी फिक्स किया हुआ है उसके अंदर, सॉरी फिल्म स्पीड फिक्स की हुई है। नॉर्मली किसी जमाने में तो फिल्म स्पीड फिक्स होता था, वो तो चेंज नहीं होती थी। तो क्या चीज चेंज होती थी, शटर स्पीड। तो आपको शटर स्पीड पता लग जाती थी। बट आज के टाइम में क्योंकि आप फिल्म स्पीड भी चेंज कर सकते हैं फिल्म के अंदर, ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है एलएस डिजिटल कैमरा और पुराने कैमरा के अंदर, कि आप फिल्म स्पीड जो है इजीली चेंज कर सकते हैं, पहले नहीं कर सकते थे। थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सोचना पड़ेगा कि प्रोग्राम मोड और अपर्चर मोड में लोग कंफ्यूज नहीं हो जाए। ऑटो देखो क्या होता है, लोग मोटे दिमाग से सोचते हैं ऑटोमेटिकली। ऑटोमेटिकली का मतलब प्रोग्राम, प्रोग्राम अपने आप कर देगा। अगर आप इस क्वेश्चन को सरफेस लेवल पे देखो तो बहुत सारे लोग इसको प्रोग्राम मोड पे डाल के आएंगे आंसर को। उनको लगता है ऑटोमेटिक का मतलब प्रोग्राम, प्रोग्रामिंग हो गया, अपने आप कर लेगा। ये अपने आप नहीं करेगा वो। अपर्चर प्रायोरिटी की जिसको समझ है वो समझेगा कि मुझे कंट्रोल करना है डेप्थ ऑफ फील्ड, समझेंगे नहीं तो कैसे करूंगा। तो तभी पॉसिबल है जब मैं एक पर्टिकुलर अपर्चर के ऊपर शूट करूं। शटर स्पीड प्रायोरिटी ये हो गया आपका। उसके बाद आगे लेंस विद डेप्थ ऑफ फील्ड स्केल हेल्प्स यू। ये क्या है ये डेप्थ ऑफ फील्ड स्केल, मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक अलग से किताब आती है अमेरिकन सिनेमेटोग्राफर मैनुअल, उसमें छपा होता है ये। और भी किताबों में इधर उधर मिल जाएगा आपको। उसमें सारा कुछ लिखा होता है कि किस अपर्चर पे किस फोकल लेंथ के लिए क्या डेप्थ ऑफ फील्ड होगी। डिस्टेंस के हिसाब से डेप्थ ऑफ फील्ड चेंज होती रहती है। तो आप जो है दो चीजें चेक करते हैं, उसके अंदर फिक्स्ड होता है। किसी भी कंपनी का लेंस हो 50 mm होगा, पर्टिकुलर फॉर्मेट की बात हो रही है। तो अगर 35 mm फॉर्मेट के लिए हम बात कर रहे हैं, तो किसी भी कंपनी का लेंस हो उसका डेप्थ ऑफ स्केल, ये भी क्वेश्चन बन सकता है इसके अंदर, लिख लेता हूं कि अगर जूम निकॉन का है कैनन का है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो स्केल जो है, स्केल से क्या पता लगता है, प्रिडिक्ट रेंज ऑफ शार्पनेस एट ईच अपर्चर। 2.8 पे शूट करूंगा तो कितना मिलेगा, 4 पे कितना करूंगा, 5.6 पे कितना करूंगा। तो सिनेमाटोग्राफर को पता होता है कि मैं F8 पे शूट कर रहा हूं और मेरा लेंस जो है ये है। तो आपका अपर्चर पता लग गया, फोकल लेंथ आपके पास है, उसके हिसाब से जब आप डिस्टेंस लेते हैं कि मेरा सब्जेक्ट 10 फीट पे है और एक कैरेक्टर कोई खड़ा हुआ है 8 फीट पे या 6 फीट पे, तो आपको कैसे पता लगता है कि वो वहां पे वो डेप्थ ऑफ फील्ड प्रीव्यू बटन नहीं होता है सिनेमा के अंदर। और अगर है भी, अगर आप मैनुअली उसको सेट भी कर देते हैं, जो कि करते ही हैं आप, तब भी कई बार पकड़ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नॉट एवरीबडी इज सेंसिटिव इनफ। मुझे एग्जैक्टली पता करना है कि एक कैरेक्टर 7 फीट पे फोकस किया हुआ है, वो 5 फीट पे खड़ा हुआ है, फोकस में होगा कि नहीं होगा। तो मैं अपनी डेप्थ ऑफ फील्ड टेबल से देख लूंगा, उसमें मुझे पता लग जाएगा कि 5 फीट पे जो कोई सब्जेक्ट है वो फोकस में होगा कि नहीं होगा। सर सर जी। there's a problem regarding question number 18 सर। आपने बोला ना कि ऑटोमेटिकली डेप्थ ऑफ फील्ड, तो अपर्चर प्रायोरिटी में तो भी सेट मैनुअली अपर्चर और हम लोग अपर्चर ISO प्रायोरिटी क्या होता है पहले समझिए आप। अपर्चर प्रायोरिटी का मतलब यह है कि मैं डिसाइड कर रहा हूं किस अपर्चर पे शूट होगा। हाँ 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 मैंने डिसाइड किया ना, कैमरा ने तो डिसाइड नहीं किया। दैट इज व्हाट हाँ अपर्चर प्रायोरिटी इज। यस। ऑटोमेटिकली तो नहीं हुआ वो, सर तो क्वेश्चन क्या मैंने लिखा? डिसाइड किया। मैंने डिसाइड किया ना। आप हाँ दोबारा से एक हाँ बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए, देखो कंफ्यूजन नहीं क्वेश्चन, होना चाहिए। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, दोबारा पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। विच शूटिंग मोड ऑफन कंट्रोल डेप्थ ऑफ फील्ड ऑटोमेटिकली। वो ये बोल रहा है कि डेप्थ ऑफ फील्ड अपने आप कंट्रोल हो जाए। तो मैनुअली अगर मैं कर रहा हूं, मान लीजिए, तो मैं डिसाइड कर रहा हूं, ठीक है जी। प्रोग्राम मोड में तो मुझे पता ही नहीं लग रहा है कि कितने उसके ऊपर हो रही है। क्यों? क्योंकि मेरी शटर स्पीड कुछ भी हो सकती है। शटर स्पीड, फिल्म स्पीड और अपर्चर, 3 फैक्टर होते हैं प्रोग्राम के अंदर, तो कुछ भी हो सकता है। तो मैं कहां कंट्रोल करूंगा?
मैंने अगर 2.8 पे अपर्चर प्रायोरिटी पे लगाया तभी तो जाके डेप्थ ऑफ फील्ड ऑटोमेटिकली कंट्रोल हुई मेरी। बात समझ आ रही है? सर ऑटोमेटिकली लिखा है वो देखो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं एक मिनट। विच शूटिंग मोड वन कैन यूज which priority mode we can control depth of field, that can be which priority mode we can control depth of field। ऑटोमेटिकली वर्ड को हटा दो, ऑटोमेटिकली में थोड़ा कंफ्यूजन आ रहा है, बट अगर आप मैं ये क्वेश्चन रखता हूं कि विच प्रायोरिटी मोड वी कैन कंट्रोल डेप्थ ऑफ फील्ड, तो वो यहाँ पर मैनुअल भी आ जाएगा एक तरीके से, तो मैनुअली भी कर सकता हूँ मैं। तो डेप्थ ऑफ फील्ड मैंने वहां F8 लगा दिया, मान लीजिए, बात खत्म, उसके हिसाब से मैंने चूज कर लिया, तो मैनुअल भी करेक्ट आंसर हुआ उस तरीके से देखा जाए तो। और सर लास्ट क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली था तो हमारा प्रोग्राम मोड और शटर प्रायोरिटी मोड भी जा रहा था, क्योंकि शटर में वी कंट्रोल शटर और अपर्चर ऑटोमेटिकली हो जाती है। देखिए जब आप प्रायोरिटी मोड इस्तेमाल करते हैं तो होता क्या है, अंदर अपर्चर प्रायोरिटी इस्तेमाल करते हैं तो आपकी अपर्चर तो चेंज नहीं होती, करेक्ट? यही मतलब हुआ ना अपर्चर प्रायोरिटी मोड का। वो मेरे हाथ में कंट्रोल रहता है। देखिए अपर्चर प्रायोरिटी मोड का मतलब क्या है, आपको ये समझ आना चाहिए। आप एक फिक्स अपर्चर पे शूट कर रहे हैं, यही मतलब है ना, चाहे वो 2.8 है, 5.6 है, 8 है, उसके हिसाब से कैमरा फिल्म स्पीड और शटर स्पीड वो एडजस्ट करेगा, ठीक है? पहले जमाने में फिल्म स्पीड फिक्स होती थी, तो फिल्म स्पीड आपने फिक्स कर दी, तो अपर्चर प्रायोरिटी पे क्या चीज चेंज हो रही है अभी आपकी? शटर। बात समझ आ रही है आपको? अपर्चर प्रायोरिटी पे किसी जमाने में दोनों चीजें फिक्स हो गई, मेरी मेरी अपर्चर भी फिक्स हो गई और मेरा फिल्म स्पीड भी फिक्स हो गया। अब अकॉर्डिंग टू द एक्सपोजर कैमरा विल टेल मी व्हाट इज द शटर स्पीड। तो इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा तो और फॉर्मुलेट करूंगा दूसरे तरीके से, फिलहाल आप इसको छोड़ दीजिए, मैं इसको और तरीके से फॉर्मुलेट करूंगा, जिसके अंदर जो है शटर, ये आइडिया ये था कि शटर प्रायोरिटी को मैं इंक्लूड करना चाह रहा था, तो अभी इसको आप छोड़ दीजिए, मैं और शटर प्रायोरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको फॉर्मुलेट करता हूँ। सॉरी, अपर्चर प्रायोरिटी, ये अपर्चर प्रायोरिटी में कौन सी चीज होती है जिसके हिसाब से हम लोग जो है करेक्ट आंसर दे पाए। A lens with a depth of field scale help you, बात हो गई प्रिडिक्ट रेंज ऑफ शार्पनेस। ऐसे ही जैसे यहां पे हमने अपर्चर प्रायोरिटी की बात की है, ऐसे ही एक क्वेश्चन बन सकता है शटर प्रायोरिटी मोड पे, ठीक है जी? एक शटर प्रायोरिटी भी होता है उसके अंदर, एक मैनुअल भी होता है, प्रोग्राम भी होता है। आइडिया ये था कि तीनों मोड में कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो। आई विल फॉर्मुलेट फ्यू मोर क्वेश्चन ऑन दिस सो दैट द कॉन्सेप्ट विल बी मोर क्लियर। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड हेल्प्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किसी का कैमरा, किसी का साउंड ऑन है थोड़ा, जिसकी वजह से डिस्टरबेंस आ रही है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जब वो किसी का इंटरव्यू ले रहे होते हैं तो पीपल शुड बी इमोशनली चार्ज्ड समटाइम। सो व्हाट हैपेंस इज समटाइम somebody is crying, somebody's eyes are wet. How to capture the emotion is a very very important part of the documentary filmmaking. Shallow depth of field helps highlight emotion, yes. Hide camera shake, उससे कोई लेन देना नहीं है। शो फुल कॉन्टेक्स्ट, वो भी जरूरी नहीं है, फेसअप भी हो सकता है। रिड्यूस ब्राइटनेस, उसका कोई मतलब नहीं है। तो हाईलाइट इमोशन इज द करेक्ट आंसर। Shallow depth of field often causes clipping, high ISO, part of the subject to fall out of focus. Definitely C is the correct part. How does increase subject to camera distance affect of field? जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाता है, डेप्थ ऑफ फील्ड हमारी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। शूटिंग विद f1.4 आउटडोर इन डे लाइट रिक्वायर, वो वही वाली पहले वाली बात कि जैसे ही बाहर में जाएंगे हम लोग, हमें 1.4 हो, 2 हो, 8 हो, जो भी कुछ अपर्चर हो, अगर हमें डे लाइट में शूट करना है तो एक्सपोजर कंट्रोल करने के लिए हमें 1.4 पे, आप बाहर कभी शूट नहीं करते हैं आउटडोर में। आउटडोर में 1.4 पे कभी शूट नहीं करते हैं। आउटडोर में आप f11 f16 में शूट करते हैं। बट अगर आपको किसी पॉइंट ऑफ व्यू से 1.4 पे करना पड़ जाए, कैसे? कि मुझे बहुत शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड चाहिए, इतनी लाइट है मेरे पास बट मुझे फिर भी
to have the shallow depth of field I want to shoot at f2 और 1.4, तो ND फिल्टर लगाते रहो, ND3 6 9 आते हैं, उसके हिसाब से आप स्टॉप कम 3 एक स्टॉप, 6 2 स्टॉप, 3 9 9 3 स्टॉप, तो 3 स्टॉप तक आप इजीली कंट्रोल कर सकते हैं। आता और ज्यादा भी है बट 3 से ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। What describe the area in acceptable focus in sharp? डेप्थ ऑफ फील्ड जो हमने पहले बात की है आपसे। Which camera control directly adjust depth of field? कैमरा कंट्रोल की बात हो रही है, मतलब कैमरे के ऊपर जो बटन है उसके हिसाब से, तो वहां पे शटर स्पीड का भी बटन होता है, उससे कोई मतलब नहीं है हमारा। अपर्चर का बटन होता है, उससे लेना देना है। वाइट बैलेंस भी होता है और फिल्म स्पीड भी होती है, तो इनडायरेक्टली उसने कैमरा कंट्रोल बटन की बात कर ली यहाँ पर कि कौन कौन से बटन है जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पॉइंट वही है बट उसको घुमा फिरा के वही बात को, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछे वो आंसर दे लेंगे आप। डेप्थ ऑफ फील्ड इंक्रीजेस व्हेन focal length increases, aperture is stopped down। एक मिनट, डेप्थ ऑफ फील्ड इंक्रीजेस व्हेन अपर्चर वाइडन्स, नहीं। आईएसओ राइजेस, ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है थोड़ा सा। अपर्चर वाइडन्स, अपर्चर बढ़ा दिया तो डेप्थ ऑफ फील्ड इंक्रीज नहीं होगी, रॉन्ग है। आईएसओ बढ़ाने से क्या लेन देना है? आईएसओ बढ़ाते हैं हम लोग अगर 100 ASA से 200 ASA चले जाते हैं तो उससे क्या है, एक्सपोजर बढ़ गया, डेप्थ ऑफ फील्ड का कोई लेना देना नहीं है। फोकल लेंथ इंक्रीजेस, फोकल लेंथ अगर बढ़ जाएगी मान लीजिए तो डेप्थ ऑफ फील्ड इंक्रीज होगा नहीं। अपर्चर कट डाउन कर दूंगा तो मेरी डेप्थ ऑफ फील्ड इंक्रीज हो जाएगी, तो डी इज करेक्ट आंसर। ए हाई की प्रोडक्ट, हाई की प्रोडक्ट मतलब बेसिकली फैशन फोटोग्राफी के अंदर है या कोई चमकता हुआ प्रोडक्ट। लो की मतलब डार्क डार्क और हाई की मतलब थोड़ा ब्राइट एरियाज। जो जो जोन एंसेलेडम के जोन सिस्टम की बात की थी, जो जोन 5 से नीचे के जोन है उनको भूल जाओ, हाई की के अंदर जो ऊपर वाले जोन है 6 7 8 9 वो सारे की बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन कनेक्ट कर सकता है उस दूसरे तरीके से, हाई की प्रोडक्ट शॉट्स व्हाट डेप्थ ऑफ फील्ड इज प्रेफर्ड, जिसमें हमारे पास सब कुछ चीजें फोकस में हो, विच मींस डीप। डीप और शैलो ये दो वर्ड हैं, याद रख लो बस। शैलो का उल्टा डीप, सिंपल। बुके इज मोर नोटिसेबल व्हेन, मैंने पहले भी बात की है आप लोगों से कि जब हमारे पास वाइड अपर्चर होगा तो उसमें डेप्थ ऑफ फील्ड कम होगी, जिसकी वजह से बैकग्राउंड जो है आउट ऑफ फोकस चला जाएगा। नैरो अपर्चर में डेप्थ ऑफ फील्ड ज्यादा होगी तो बैकग्राउंड कहां से ब्लर होगा? शटर स्पीड का कोई मतलब नहीं है, हाई आईएसओ का भी कोई मतलब नहीं है।